Good evening and a very warm welcome to all the passionate educators joining us today. I'm Dr. Shanuli Ray, founder of EdVision. On behalf of Team EdVision, it gives me immense pleasure to welcome you to this special online webinar on Hindi pedagogy, innovative approaches to teaching grammar, poetry, and prose. I'm delighted to be joined by my esteemed co-founder, Dr. Vikrant Singhal, whose continuous guidance and commitment to educator empowerment have been instrumental in shaping EdVision as a trusted global learning platform. At EdVision, we strongly believe that language is not merely taught, it is experienced. Hindi, as a language, carries culture, emotion, creativity, and critical thinking within it. Yet, teaching Hindi meaningfully in today's classrooms requires us to move beyond traditional methods and embrace innovation, expression, and learner centric pedagogy. This session has been thoughtfully curated to support educators in reimagining how Hindi grammar becomes intuitive, how poetry becomes expressive, and how prose becomes deeply engaging for learners. Because when language teaching becomes joyful and purposeful, learning becomes lasting. We are also truly honored to have with us our esteemed facilitator for today, Dr. Paramjit Oberoi, senior educator and teacher trainer, whose expertise, depth of understanding, and years of experience in language education have inspired educators across the country and beyond. Her insights into innovative Hindi pedagogy and classroom implementation will surely offer valuable takeaways for every participant today. So, dear educators, as you participate in this session, I invite you to reflect, interact, and explore new possibilities. Keep your notebooks ready, your minds open, and your passion for teaching alive, because this session is designed to be practical, interactive, and transformative. Once again, welcome to EdVision, where educators grow, ideas evolve, and learning finds purpose. Over to you, Dr. Paramjit Oberoi, to take us forward on this enriching pedagogical journey. And welcome to the EdVision online platform. नमस्कार एवं सुस्वागतम। आप सभी का इस हिंदी शिक्षण कार्यशाला या यूं कहें आभासी संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी को केवल सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि कक्षा में प्रयोग योग्य गतिविधियों के रूप में समझेंगे। मैं जानती हूँ आप सब लोग पढ़ाते भी होंगे या पढ़ा चुके भी होंगे, तो अपना अपना अनुभव होता है और आप जानते हैं कि साहित्य तो समाज का दर्पण होता है। संसार एक खुली पुस्तक है। इस पुस्तक में से हम जितनी भी चीजों को इकट्ठा करना चाहे, उनको संयोज कर प्रस्तुत करना चाहे, वो तो हमारी और आप सबकी योग्यता पर निर्भर करता है। तो इस कार्यशाला के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। पहला, हिंदी पेडागोजी की सही समझ कि वो क्या है, और दूसरा, रचनात्मक गतिविधियों द्वारा भाषा कौशल का कैसे विकास करना चाहिए। तीसरा, व्यवहारिक उदाहरण। आप जानते हैं कि हम कविता भी पढ़ते हैं, राइट, गद्य भी पढ़ते हैं, पद्य भी पढ़ते हैं, तो क्या ये सब चीजें अलग अलग करके पढ़ाएं? अब मान लीजिए, एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि हमने एक कविता चुनी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, राइट, तो क्या ये सिर्फ कविता ही होगी? कविता तो है, कविता का एक रूप तो है, लेकिन क्या हम इसे गद्य या व्याकरण से जोड़कर देख नहीं सकते, जांच नहीं कर सकते? तो अधिकतर मैंने देखा है, बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाएं जब भी कविता का पाठन करवाते हैं कक्षा में या बच्चों से भी सुनते हैं, तो शायद हम उसके शीर्षक के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करते।
वही बात को लेकर के मैं अपनी इस कार्यशाला का उद्घाटन कर लीजिए, शुरुआत करना चाहूंगी, राइट। और चौथा हमारा है कि शिक्षक को फैसिलिटेटर के रूप में सशक्त बनाना है हम सबको, व्यवहारिक उदाहरणों के द्वारा। तो कह सकते हैं कविता केवल भावार्थ लिखवाने के लिए नहीं है, कविता एक महसूस कराने की चीज है। मैं भी बहुत सारी कविताएं लिखती हूँ, तो मैं एक आपको छोटा सा एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो जो भी बातें मैं आपसे कर रही हूँ ना, शायद आपको लग रहा होगा कि ये क्या बातें हो रही हैं। तो कक्षा में भी आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज होती हैं, राइट। तो बच्चों को शुरू से ही ध्यान से सुनना है, जो टीचर कह रही है उसका एक एक वर्ड यूजफुल है। हम ये ना सोचे टीचर ने पता नहीं क्या बताना शुरू कर दिया। तो जब हम पाठ पढ़ेंगे, कविता पढ़ेंगे, कोई भी चर्चा करेंगे, उसमें इन सभी चीजों का, भाषा शैली का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। मेरे साथियों, आज कविता केवल महसूस करने के लिए ही है। जब तक हमारे मन के अंदर भाव, फीलिंग्स नहीं आएंगी, तो हम कुछ लिख नहीं सकते हैं। एक बार 1997 की बात है, मैं इंडियन स्कूल अलगुब्रा में थी, ओमान में, और मैं चाय बना रही थी सुबह। तो चाय बनाते समय थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होनी शुरू हो गई। तो खिड़की होती है, आप जानते हैं, वहां पर छोटे छोटे से जीव, बिल्कुल छोटे, माइक्रोस्कोपिक, लाइक माइक्रोस्कोपिक तो नहीं, तो मैंने कैसे देखा, मतलब बहुत छोटे, कहने का अर्थ है। उनको मैं देख रही थी, तो मेरे मन में ये बात आई कि ये जीव बेचारे, मैं खिड़की बंद करूंगी तो मर भी जाएंगे, मैं ध्यान रखूंगी तो शायद किसी तरह से, ये तो एक आवागमन का एक चक्र है, वो तो सभी जानते हैं। मैंने अपनी पहली कविता की संरचना की, जीवन एक चक्र है, चक्र के ऊपर। तो जो मेरे मन में विचार आ जाते हैं, जो मैं देखती हूँ, महसूस करती हूँ, उनको मैं कविता रूप में पिरोने की कोशिश करती हूँ। तो व्याकरण जो है वो भाषा की आत्मा है, डर नहीं है। व्याकरण के रूल्स को लेकर अगर हम देखेंगे तो शायद हमारे विद्यार्थी थोड़ा डर जाएंगे। उन्हें अगर हम व्यवहारिक ज्ञान के रूप में व्याकरण को सिखाएंगे, मतलब लिटरेचर से जोड़कर, गद्य से जोड़कर, पद्य से जोड़कर, तो शायद उन्हें इतनी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब हम व्याकरण को खेल बना देते हैं ना, बच्चे बिना दबाव के सीखते हैं। और जब हम मूल्यांकन करते हैं किसी भी परीक्षा का, चाहे वो कक्षा परीक्षा है, चाहे वो हमारा किसी भी प्रकार का असेसमेंट है, उसमें सहभागिता, प्रस्तुति और प्रयास पूरा होना चाहिए। तो हिंदी पेडागोजी का क्या अर्थ है, उससे कुछ संबंधित जो जो चीजें हैं, मैं आपको साथ साथ में कुछ स्लाइड्स के द्वारा बताऊंगी और कुछ कुछ उदाहरण भी साथ में दूंगी। और आई थिंक कि आज के इस युग में जो एआई टूल्स यूज किए जाते हैं, वह एक हद तक हमारी शिक्षण पद्धति को थोड़ा आसान भी बनाते हैं, लेकिन हमें थोड़े सोच समझ कर उसका प्रयोग करना चाहिए। अभी अभी मुझे एक समाचार मिला कि एक विद्यार्थी ने के पेरेंट्स ने, अभिभावकों ने मुझसे ये डिस्कस किया कि आप हमारे बच्चे को थोड़ा डांटिए। सो मैं हैरान हो गई, मैं स्तब्ध हो गई, मैं अवाक हो गई कि बच्ची तो बेचारी इतनी प्यारी है, उसको डांटना क्यों है। डांटना तो मेरा शायद स्वभाव भी नहीं है। आज 33 साल के इस अंतराल में मैंने शायद ही किसी विद्यार्थी को डांटा हो या मारा हो। तो मैंने पूछा बच्चे से क्या हुआ, तो उसने अपने कुछ पॉकेट मनी से पैसों को जोड़कर एक मोबाइल बाय कर लिया बिना माता पिता को बताए। तो माता पिता नेचुरली ये बहुत ज्यादा भावपूर्ण होकर के चिंतित भी हो गए। तो मैंने बच्चे को समझाया, बेटा आप पूछ कर काम करें, क्योंकि जो भी विद्यार्थी, या हम भी एक समय पर विद्यार्थी थे, सबके लिए है, जो अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करता है, वह जीवन में कभी भी मात नहीं खाता। ये सबसे बड़ा नैतिक मूल्य है, जिससे शायद हम हिंदी के, विशेषकर हिंदी के शिक्षकों से मैं कहना चाहूंगी, हम इस बात को भूल जाते हैं। बस पाठ पढ़ाया, कक्षा से बाहर निकल गए, प्रश्न उत्तर सुन लिए, एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए, शाबाशी दे दी बच्चे को, लेकिन हमने नैतिक मूल्यों को एक साइड पर रख दिया। और बच्चा जब बड़ा हुआ तो हमने कहना शुरू कर दिया कि इस बच्चे को तो ये अकल नहीं है, ये मैनर्स नहीं है, नकारात्मकता भर दी। तो सकारात्मकता एक बहुत बड़ा रीजन है, एक रहस्य है, जो व्यक्ति को मार्ग को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा साथ देता है, हम कह सकते हैं। तो चलिए, आज की जो इस कार्यशाला में पीपीटी के थ्रू मैं आपको साथ साथ में कुछ बातें साइन करूंगी और उदाहरण भी दूंगी। तो हम शुरू करते हैं।
1 मिनट। आज हमारा पेडागोजी का जो मुख्य विषय है उसके ये बिंदु हैं, आप देख रहे हैं। तो मैं हिंदी में पढ़ूंगी। आधुनिक हिंदी शिक्षण शास्त्र को समझना। आधुनिक ये शब्द याद रखिएगा, ये कोई लकीर के फकीर होने वाली यहाँ पर बात नहीं है। तो हमें उन चीजों को भी याद रखना है, क्योंकि अगर रूढ़ियां हमारे रास्ते में अगर बंधन बन जाती है ना, तो उनको शायद ब्रेक करना चाहिए, तोड़ना चाहिए। ये कक्षा 10 में भी एक लेसन है, तातारा वामिरो, आप सब जानते होंगे। तो हमें उसी खोज को आगे बढ़ाना है। सेकंड, हिंदी व्याकरण पढ़ाने के लिए नई रणनीतियां हमारी क्या होंगी? रचनात्मकता और अभिव्यक्ति के साथ हिंदी कविता पढ़ाना, गद्य पढ़ाने के प्रभावी तरीके, और सबसे मुख्य बात है छात्र केंद्रित। छात्र केंद्रित हमारा वहां पर कोई कंपटीशन या अपनी प्रतियोगिताएं नहीं है कि मुझे एक से बढ़कर एक आगे बढ़कर ही अपने कदमों को रखना है। हमारी जो शिक्षण नीति है वो छात्र केंद्रित होनी चाहिए। छात्र केंद्रित होगी, उसमें अनुभव भी काम आएंगे। 33 वर्षों में मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। कोई भी बच्चा, ऐसे कहा जाता ना, माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। तो जीवन जो चल रहा है, जो संसार है, वो हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है। और मूल्यांकन और कक्षा में लागू करना, हम उनको कैसे लागू करेंगे, इसके विषय में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। पेडागोजी का अर्थ केवल पढ़ाने की विधि नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बल्कि कैसा पढ़ाया जाए कि विद्यार्थी स्वयं सीखने लगे। ये नहीं कि हमने कक्षा में पढ़ा दिया और बेचारा जो पीछे वाली लाइन में बच्चा बैठा है ना, वो तो शायद सो ही रहा है या निराश ही हो रहा है, तो मुझे पीछे जाकर उसको भी जगाना है, अपने बच्चों की तरह व्यवहार करना है। एक शिक्षक बनकर, वो तो हमें करना है, लेकिन शिक्षक बनकर अगर हम उसके ऊपर कमांड करें, शायद ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो भी बच्चे हैं और बच्चे भगवान का रूप होते हैं, राइट। तो बच्चे कैसे पढ़ाए जाएं कि विद्यार्थी स्वयं सीखने लगे, यही पेडागोजी है। हिंदी पेडागोजी का उद्देश्य भाषा को रटवाना नहीं, अनुभव करवाना है। तो साथियों, अनुभव करवाना है, रटवाना नहीं है। क्योंकि जो बच्चे रटते हैं, मैं यहाँ पर बिल्कुल रटने की जीरो संख्या नहीं कह रही, थोड़ा बहुत तो रटना ही पड़ता है, सिद्धांत होते हैं कुछ, हमें रटने हैं लेकिन समझ कर। और ब्लूम टेक्सोनॉमी भी इसी के ऊपर आधारित है, राइट। तो हमें भाषा को रटवाने पर जोर नहीं देना, क्योंकि अगर बच्चे ने 2 लाइनें याद कर ली हैं, उसमें 2 वर्ड उसने स्किप कर दिए, बेचारे ने, सारे नंबर कट गए, क्योंकि मीनिंग तो आया ही नहीं, अर्थ का अनर्थ हो गया। तो समझा करके, समझ करके अगर विद्यार्थी उसको याद करेगा, शायद उसके लिए ये फायदेमंद ही रहेगा। तो आधुनिक हिंदी शिक्षण शास्त्र को समझना है हमें। इसके अंतर्गत कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं। वैसे तो हर चीज की स्टडी बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, तो मैंने थोड़ा शॉर्ट में एग्जाम्पल के रूप में समझाने की कोशिश मतलब करने के लिए योजना बनाई है। तो हिंदी भाषा शिक्षण की नई विधियां हैं। छात्रों को सक्रिय, सक्रिय मतलब अलर्ट, वही मैंने आपको बताया कि विद्यार्थी सोना नहीं चाहिए, सभी अलर्ट होने चाहिए। आप आगे भी जाएंगे, आप पीछे भी जाएंगे। कुछ शिक्षकों को, अध्यापक अध्यापिकों को मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है, बहुत सारी क्लासेस मैंने ऑब्जर्व की हैं। नए नए डेमो भी मैं लेती थी, तो टीचर आगे खड़े हैं और बताकर, पढ़ाकर चले गए। उन्हें शुरू में, मध्य में जो बच्चे बैठे हैं या पीछे, उनसे शायद कोई मतलब नहीं है। तो मेरा ये सजेशन है, मेरी सलाह है ये, कि हमें बीच बीच में जाकर उनको देखना है, उनको शाबाशी भी देनी है, उठाने का भी कष्ट करना है। तो हिंदी शिक्षा शास्त्र करके सीखो, क्योंकि करके सीखेंगे तभी ना, जब ध्यान देंगे। तो सिद्धांत पर आधारित। Lata ma'am, could you please mute yourself? Yes. तो छात्रों द्वारा व्याकरण, कविता या गद्य को खुद करके समझना, जीवन से जोड़कर पढ़ाना, जैसे गणित को वैज्ञानिक बनने से जोड़ना। अब गणित है, हम गणित पढ़ रहे हैं, हमारे जीवन का तो गणित ही यही है, आपने सुना होगा। इसको तो, इसकी केमिस्ट्री समझ नहीं आती। तो कहने का अर्थ क्या है, साहित्यिक अर्थ में अगर हम लेना चाहें, तो इसका तो गणित ही बड़ा व्यापक है, इसका गणित तो अलग ही है, इसके जोड़ तोड़ तो अलग ही हैं, तो इसकी केमिस्ट्री ही अलग है। तो विद्यार्थी को केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट के सेंस में, जिसे रसायन विज्ञान कहेंगे,
गणित जो है, मैथ्स, तो सभी विषयों को जोड़कर भी विद्यार्थी को समझ आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, एक मैं ऑब्जर्व करी थी क्लास, उसमें मैंने एक उदाहरण दिया बच्चों को। एक लेसन था मिठाई वाला, कक्षा 7 में। तो टीचर उनको बता रही है 16 आने, 4 आने, पढ़ा रही है, रीडिंग करा रही है। अरे आना होता क्या है, मेरे बच्चे को ये तो पता होना चाहिए कि आना क्या है। कोई भी विद्यार्थी जवाब नहीं दे पा रहा। काफी वर्षों के बाद वही विद्यार्थी जब 10th में भी आ गए, पढ़ के भी निकल गए विद्यालय से, तो उनको आना नहीं पता। जीवन में प्रयोग होती है ऐसे। मैं ये नहीं कह रही हर जगह, कभी कभी कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपसे कुछ पूछ बैठेगा, आप हिंदी के शिक्षक हैं या विद्यार्थी हैं, आना का अर्थ बताओ, ये एक एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आना 6 पैसे इज इक्वल टू 1 आना। तो अब कैलकुलेशन जब मैंने करके उनको सिखाई, तो वो तो मैथ्स है, गणित है उसमें। तो अब बच्चों को कैलकुलेशन करने के लिए उंगलियों के ऊपर गिनना शुरू करते हैं, या कैलकुलेटर का आजकल जमाना है, उस पे वो पढ़ना सीखेंगे। तो हम लोगों को तो क्वार्टर, हाफ और पौने का पहाड़ा भी याद कराया जाता था जब हम लोग पढ़ते थे। तो पुरानी कुछ रूढ़ियों की बात मैं दोबारा यहाँ पे चर्चा कर रही हूँ। कुछ रूढ़ियां, मतलब इन बातों को पुराने नहीं समझेंगे ना, ये तो हमारे इस समय वर्तमान समय में भी प्रयोग किए जा रहे हैं। आप भी जानते होंगे सब, मेरे बहुत सारे साथी बच्चों को 1 रुपया देते होंगे, कहेंगे 50% अपने भाई को दे दो। 50% कितना है? और बच्चा तो बिल्कुल गोल हो गया, 50% निकालना शुरू हो गया कितना। अब हमारे तो टिप्स पर है, बेटा ये 1 रुपया है, 50% 50, राइट? तो 4 चवन्नियां हो जाती हैं। हम तो ऐसे ही उंगलियों पे जांच लेते हैं। तो आगे मतलब जब ये बच्चे कैरियर बनाएंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, अपने परिवारों को चलाएंगे, तो क्या इस तरह से गणित या अपने जीवन के गणित को एक बैलेंस, एक संतुलित रूप में जी पाएंगे? तो हमें ये सब चीजें भी, एक आई थिंक एक साहित्य का जो टीचर है, जो व्याकरण पढ़ा रहे हैं, जो कविता पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, वही उनको सिखा सकते हैं। क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये मैं बार बार कहूंगी, तो शायद कुछ लोगों को सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये याद रखनी है। जो साहित्य है वो पूरे समाज, हमारे इर्द गिर्द, भगवान ने एक पुस्तक खोली हुई है, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, संसार पुस्तक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को पत्र में लिखा था, और उसका शीर्षक दे करके बुक में ये लेसन है, संसार एक पुस्तक है। अब विद्यार्थी कहेंगे संसार एक पुस्तक, ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी, पुस्तक तो मैम ये है। अरे बेटा, उनको समझाना है कि संसार एक पुस्तक की तरह से खुली पुस्तक है। भगवान ने दिया, एक रोड़ा भी अपनी कहानी कहता है। अगर हम जानना चाहें तो दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। तो बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान देना, मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर मैं 10th में पढ़ा रही हूँ मनुष्यता कविता, तो सिर्फ मनुष्यता नहीं, मेरे बच्चे को 6 का लेसन भी पता होना चाहिए, उससे क्या रिलेट कर रहा है। मनुष्यता या स्वतंत्रता जो हम पढ़ा रहे हैं, तो मैं उनको कभी कोटेशन भी देती हूँ, बेटा मनुष्य तो सभी हैं, लेकिन मनुष्यता सब में नहीं है। अर्थ बताओ, चर्चा करो। तो एक के अंदर एक चीज चेन की तरह से जुड़ी हुई है। व्याकरण, साहित्य या गद्य पद्य को हम अलग करके नहीं पढ़ा सकते। कृपया इस बात को गांठ बांध लीजिए, तो शायद आपको भी बहुत सुविधा होगी। मेरा अपने मतलब शिक्षकों जो मेरे साथी हैं, उनसे मेरा ये आग्रह है कि जब भी वो ग्रामर पढ़ाएं, अगर मैं संज्ञा पढ़ा रही हूँ, तो संज्ञा का उदाहरण, तो मेरा बच्चा सोच रहा है संज्ञा का उदाहरण क्या दूं, चाहे वो 3rd का बच्चा, चाहे वो 6 का बच्चा, चाहे 10th का बच्चा है। आपको भी ये अनुभव होगा कि बच्चे 10th के एकदम से संज्ञा का उदाहरण नहीं दे पा रहे, कुछ तो देते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही। हमारी जिम्मेवारी पूरी क्लास की है, 40-50 जितने भी बच्चे हैं, 100, 70, 80। तो बच्चा क्यों सोच रहा है बेटा ये क्या है, साइन में मैंने उनको उदाहरण दे दिए फिर भी नहीं दे पा रहे। आंख, चश्मा, नाक, संज्ञा ही तो है, हमारे इर्द गिर्द ही है, हम उनको ढूंढ रहे हैं। तो मुझे क से कबूतर, ख से खरगोश नहीं बताना, क से कब बोलो। खराब हो गई ये चीज, तो ये क्यों नहीं चीजें हो रही? तो हम इसमें थोड़ी रूढ़ियों को थोड़ा तोड़ें। और क से कबूतर, चाहे वो बुक में लिखा है, इट्स ओके, बट हमें अपनी तरफ से उसको रचनात्मकता का रूप प्रदान करना है। तो अगर विद्यार्थी इस तरह से जुड़कर कक्षा में जुड़ेंगे कैसे? एक मनोरंजक, अच्छी, रोमांचक कक्षा होनी चाहिए कि विद्यार्थी सोचे कि टीचर आप क्या बताने वाली है। तो मैंने कहा बेटा, अब मैं क्लास के अंदर गई और मैंने उनको बोला, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। मैं चुप हो गई।
बच्चे बोले मैम आगे। मैंने कहा आगे नहीं, अब आप बताओगे आगे। सो बेटा, आपने इसमें क्या क्या सीखा, कितने शब्द सुने, आपने कितने लिखे? तो लिखेंगे बच्चे, एक दो शब्द लिखेंगे, दो ही लिख लो वो भी बहुत है। तो पंछी, पंछी का पर्यायवाची शब्द बताइए। ये मैं आधुनिक रूप के शिक्षण के साथ आपको उदाहरण दे रही हूँ, ऐसे तो मैं स्लाइड्स आपको दिखा लूंगी, बहुत सारी सामग्री भरी पड़ी है, आप उनको भी पढ़ सकते हैं, राइट। तो जब हम उसको साथ में उदाहरण के साथ में प्रस्तुत करेंगे, तभी हमारी ये कार्यशाला को अटेंड करना शायद सफल बन पाएगा। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ ये आपको स्लाइड दिखाने का नहीं है, स्लाइड के साथ साथ हमें व्यवहारिक रूप में उसको कैसे लेना है वह सीखना है। तो पंछी का पर्यायवाची शब्द बता दो। अब बच्चों ने बोला, एक बच्चे, एक नहीं काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं चिड़िया, क्योंकि टीचर ने चिड़िया लिखवाया हुआ है, इवन पब्लिश्ड बुक्स में भी लिखा हुआ है चिड़िया। सो मैंने कहा अच्छा बेटा, मैं क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ, मैं क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ, आप ये इमेजिन करो, कल्पना करो, क्योंकि उनकी कल्पना शक्ति का भी मुझे विकास करवाना है साथ साथ में। सो मैंने कहा बेटा आप कल्पना करो, मैंने कक्षा में आके शब्द बोला है पंछी, पर्यायवाची बताइए। अब वो पर्यायवाची बता रहे हैं, चिड़िया बोल दिया। अब मैंने कहा चिड़िया को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? मैं तो इंग्लिश की टीचर नहीं हूँ, मैं तो हिंदी की टीचर हूँ, क्योंकि मैंने हिंदी ऑनर्स, एमए, एमफिल, पीएचडी सब हिंदी में ही किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदी कॉलेज से ही मैंने किया हुआ है। तो जब मैंने शिक्षण अपना आरंभ किया वेलम बॉयज स्कूल देहरादून में, तो मैंने इंग्लिश सीखी। मुझे कहने में ये कोई शर्म, कोई मुझे वो दुख नहीं हो रहा, मुझे बच्चों ने सिखाया, तो मैं बच्चों के साथ इंग्लिश में बोलती थी। तो आई एम नॉट वेरी मच एक्सपर्ट इन इंग्लिश, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए, बच्चों को समझाने के लिए मैं संतुलित अपनी क्लास में अपना संतुलन कर लेती हूँ। तो मैंने बच्चों से कहा बेटा चिड़िया, स्पैरो, तो मीन स्पैरो इज ए बर्ड, बाकी के बर्ड कहाँ जाएंगे बेटा, उनको हमने क्या जानवरों की श्रेणी में डाल दिया? तो स्पैरो इज वन काइंड ऑफ ए बर्ड, नॉट ऑल बर्ड को रिप्रेजेंट नहीं वो कर रही। पंछी इज पक्षी, खग, हमारे पास दूसरे दो शब्द हैं, मुझे ज्यादा गहराई तक नहीं जाना है। तो बहुत सारे टीचर्स मेरे साथी पुस्तकों को लेकर, पुस्तकीय ज्ञान बटोर कर उन्हें देने की शायद कोशिश करते हैं, शायद उन्हें कहीं शायद थोड़ा सा डर लगता है जो मैंने पाया। तो मैंने अपने टीचर्स को समझाया, इसमें डरने की बात नहीं है, कभी कभी गलत होता है, किताब में भी गलत होता है। पहाड़ से ऊंचा आदमी एक लेसन है कक्षा 8 में, उसमें लिखा है पहाड़ बहुत लंबा था, लंबा मीन्स दिस इज लंबा, ऊंचा, ऊंचाई होना चाहिए, मिस्टेक हो गई तो क्या हम सुधारेंगे नहीं क्या? हम टीचर किसके लिए, हम शिक्षक किसके लिए हैं? तो आधुनिक शिक्षा शास्त्र के प्रमुख सिद्धांत छात्र केंद्रित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप जानते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं साइंस में, प्रैक्टिकल्स के लिए फॉर्मूलास होते हैं, फिर उनका रिजल्ट निकलता है, मूल्यांकन जो करते हैं। अगर हमने किसी चीज की रेशो, मात्रा कम डाल दी तो प्रैक्टिकल सफल नहीं होगा। तो वैज्ञानिक, तो हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, वैज्ञानिक। अगर मैं बोलूंगी क, ख, ग, पूरे मैं खुद चेक कर सकती हूँ, मेरा विद्यार्थी खुद चेक करता है, मैं उनको सिर्फ एक एक ऐसे छीटा दे देती हूँ, बेटा ऐसे करो, तो वो करेंगे। अब बहुत सारे लोग, फ्लावर होता है, फ्लावर को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? फूल। कुसुम। ओके, मैंने मैंने इतने सारे नहीं, मैं सिर्फ एक ही पूछ रही हूँ। तो बहुत सारे लोग, मैम इट्स ओके, आप बहुत सारे लोग ये बोलते हैं फूल, ये फूल नहीं है, इंग्लिश वाला फूल नहीं है। प, फ, ब, भ, म, तो मेरे बच्चे खुद सीखते हैं फूल, नॉट फूल, फूल, फूल। तो मैं उनको लिप मूवमेंट करवाती हूँ। तो हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, विज्ञान है उसके पीछे। भाषा शास्त्रीय डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अंडर जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, जब हमारे एमए की कक्षाएं लेते थे, वो पूरा गले के अंदर का पूरा चित्र बना करके हमें दिखाते थे। मैं कोई विज्ञान की अध्यापिका नहीं हूं, लेकिन मुझे याद है कि उन्होंने कहा था अपने आप चेक कर लो, क्योंकि हिंदी वैज्ञानिक भाषा है। हम विद्यार्थियों के साथ इतना डिटेल में नहीं जाएंगे मैम, लेकिन जो मेन वर्ड है, फूल बोल रहे हैं हम टीचर्स, फूल बोल रहे हैं, तो फूल किसको बना रहे हैं? अपने आप को बना रहे हैं। तो फूल है वो शब्द। तो बहुत सारे, मतलब मैंने संगोष्ठियों में जाकर के टीचर को बताने की कोशिश की, और बच्चे, तो टीचर शायद बड़े होते हैं ना थोड़ा, तो झुकने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मेरे बच्चे बहुत जल्दी झुक जाते हैं, मिक्स होते हैं। फूल है ना मेरे, छोटे छोटे फूल है ना, पेटल्स है ना, पत्तियां एकदम से कोमल हैं। तो हमें भी अपने मन को कोमल ही बनाना है, जहां अहंकार आएगा वहां हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। रचनावादी दृष्टिकोण, छात्रों द्वारा अपनी पूर्व जानकारी से नया ज्ञान लेना है। तो मैंने आपसे कहा कि
मैंने एक गाने की एक छोटी सी लाइन बोली थी, तो उसमें किसके बारे में था, तो कोई बोलेगा स्वतंत्रता के बारे में था, पक्षी के बारे में था। तो उनको जो भी पूर्व ज्ञान है स्वतंत्रता को लेके फिर आगे बढ़िए, हिस्ट्री के चैप्टर्स को रिलेट कर दीजिए। कक्षा 8 में अकबरी लोटा एक लेसन है, ऐतिहासिक लोटा था वो, हिस्ट्री के साथ उसको संबद्ध कर दिया। तो पूर्व जानकारी बच्चे को होगी, अगर उसे हिस्ट्री का भी ज्ञान है, विज्ञान का भी ज्ञान है, तो वो जोड़ करके जरूर समझने की कोशिश करेगा, अगर हम उन्हें प्रॉपरली एग्जाम्पल देंगे। तो शिक्षक, हम सब लोग मार्गदर्शक मात्र हैं, हम सिर्फ मार्ग दिखाते हैं। मार्ग दिखाने का तरीका तो कहीं ना कहीं हम सही ढंग से प्रयोग कर लें, जैसे समूह चर्चा करें या प्रोजेक्ट के द्वारा भी हम सिखा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो व्याकरण शिक्षण विधियां जो है, आगमन विधि में सरल उदाहरणों, जैसे मैंने एक लिखा है राम घर गया, से सामान्य नियम बच्चों को समझाए जा सकते हैं। छात्रों को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना, बीच में क्वेश्चंस मतलब पूछना, इससे थोड़े रिलेट ना करें, लेकिन वो बच्चे उनको ढूंढे। निगमन विधि से अभ्यास करवाना, रटने से हमें बचाना है, ये मेन चीज है। और भाषा संसर्ग से महान लेखकों की रचनाएं पढ़वाना। और अगर मान लो मैं कक्षा 3 में जा रही हूँ या कक्षा 10 में जा रही हूँ, 6 में जा रही हूँ, तो प्रेमचंद का नाम तो सभी को पता होना ही चाहिए। इट इज माई रिक्वेस्ट, ये मेरी विनती है, मेरा निवेदन है कि आप भी कुछ मुख्य जो लेखक हैं, जो बहुत ज्यादा हमारे मतलब स्तंभ की तरह से हैं, हमें वो बच्चों को जरूर बताने चाहिए। तो प्रेमचंद कहानीकार है, बहुत बड़े कहानीकार है, कलम का सिपाही कहलाए जाते हैं। कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में कलम का सिपाही अगर अनुच्छेद आ जाएगा, तो बच्चे मेरे बिल्कुल जीरो हो जाएंगे कि कौन है प्रेमचंद। कभी कभी मेरा प्रिय लेखक जिससे मैंने प्रेरणा ली, कभी आपका कोई इंटरव्यू हो रहा है, वाद विवाद प्रतियोगिताएं हो रही हैं, कोई बड़ा आपसे सीख रहा है, छोटा सीख रहा है, तो कुछ लेखकों की, मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ अपने अकॉर्डिंगली स्तर के हिसाब से भी आप बता सकते हैं, कुछ कॉमन है। अब कविता रचनात्मक शिक्षण भी इसमें हो सकता है, अभिनय विधि अपना सकते हैं कविता के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया हम पंछी उन्मुक्त गण के, तो एक बच्चा पंछी बन सकता है, गगन पीछे बन सकता है, पर्दा लगाकर, अभिनय आप सब जानते हैं। तो उस वे में हम कविता को प्रेजेंटेशन के रूप में उन्हें सिखा सकते हैं, बच्चे उसमें रुचि लेंगे। बच्चों को हमें जोड़ना है समूह में, राइट। उनको जीवन के एक्सपीरियंस लेने के लिए जो हमारी मनोरंजक, उनके भावों को जो उद्वेग लाएंगी, वो चीजें हमें उसमें शामिल करनी है। तो शिक्षक व छात्र छात्राओं द्वारा भाव भंगिमा सहित कक्षा 10 की कविता, जैसे मनुष्यता एग्जाम्पल है, कविता का आदर्श वाचन हम करेंगे। पहले उन्हें पढ़ना सिखाएं, एक एक लाइन। मैं जैसे पढ़ाती हूँ, मैं बच्चों को बोलती हूँ, बेटा आप पढ़ना शुरू करो, एक लाइन पढ़िए। और एक ही बच्चा पूरी कविता नहीं पढ़ेगा या पढ़ेगी, और ना ही अध्यापक या अध्यापिकाएं, एक एक करके पूरी क्लास को टर्न देनी है। कविता को रिपीट कर लीजिए, 10 बच्चे 15 बच्चे हो गए, कविता खत्म हो गई, सो देन अगेन। तो वो बच्चा तो सो ही रहा था, 12वें नंबर वाला या 13वें नंबर वाला, वो कहता मैम कविता तो खत्म हो गई। मैंने कहा बेटा खत्म तो होगी, दोबारा से शुरू करो। तो उसका ध्यान, स्मरण विधि, अभी मैं आ रही हूँ आगे, कुछ पॉइंट्स आएंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी के, जिसमें स्मरण पूर्व ज्ञान पर आधारित। जो बच्चे सुन रहे हैं, अभी अभी तो सुनी थी कविता, तो बेटा आपको पता होना चाहिए, जो बच्चा बुक में देख करके सुनेगा, उसको ऑटोमेटिकली उसके लिखने में जो कमियां है वो अपने आप सुधर जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और गद्य से हम उसको कैसे प्रभावी बना सकते हैं, अर्थ कथन विधि द्वारा उसके अर्थ बताकर, ये आप लोग सब करते ही हैं, कठिन शब्दों के अर्थ बताते हैं। और अगर हमने कोई एक शीर्षक लिया, मैं शीर्षक की बात शायद आपसे कर रही थी, आपको याद होगा, तो अकबरी लोटा हमने शीर्षक लिख दिया बोर्ड के ऊपर, पढ़ाना शुरू कर दिया, पूरा पैराग्राफ खत्म हो गया, पूरा लेसन खत्म हो गया, प्रश्न उत्तर भी कर लिए, एग्जाम भी हो गया। लेकिन मेरे बच्चे को ये नहीं पता अकबरी के अंदर व्याकरणिक दृष्टि से आपने क्या खोजा। क्या आप इस तरह से पढ़ाते हैं क्लास में? क्या कोई मतलब शिक्षक या शिक्षिका, कोई मेरा साथी इसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेगा? कुछ उदाहरण एक शॉर्ट में बताना चाहेगा कि आप ऐसा पढ़ाते हैं शीर्षक को लेकर? तो जो मैंने पाया है, बहुत सारे टीचर्स को, भारत में भी बाहर भी, तो बहुत कम लोग शीर्षक के ऊपर डिटेल में चर्चा करते हैं। अब क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं उपसर्ग प्रत्यय, बेटा भारत, कुछ भी उपसर्ग प्रत्यय लगा के बना दो, सिखाना है ना। मैं ये नहीं कहूंगी प्रत्यय लगाओ या उपसर्ग लगाओ, अपने आप सोचो। तो भारत, भारतीय, तो पीछे लग रहे हैं। अब अकबरी, तो मुझे बताना है बेटा, अकबर प्लस ई, प्रत्यय पीछे लगा हुआ है। अकबरी लोटा, किसका लोटा? अकबरी लोटा अकबर के टाइम का। अब इतिहास से उसको मुझे जोड़ना है,
कितने साल पुरानी बात है, हिस्ट्री में आपने क्या पढ़ा। अब यहाँ पर जब हम अकबरी लोटे की बात करेंगे तो कुछ विद्यार्थी शायद अपने आप ही उपसर्ग प्रत्ययों को भी, क्योंकि हमने पहले इंस्ट्रक्शन दे दिए, निर्देश दे दिए, लेसन के अंदर आप अंडरलाइन करते जाओ जो जो आपको उपसर्ग मिल रहे हैं, प्रत्यय वाले शब्द मिल रहे हैं। ऑटोमेटिकली मुझे जब ग्रामर का चैप्टर आएगा ना मेरी क्लास में, किसी भी क्लास में, तो मुझे बच्चों को स्पेशल बताने की जरूरत नहीं है, बेटा उपसर्ग इसको कहते हैं, प्रत्यय इसको कहते हैं। वो तो एक परिभाषा टाइप होगी। तो सिद्धांत से लेकर अगर आप चलेंगे तो अपने आप चेक भी कर पाएंगे, उनको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इससे हमारे विद्यार्थी सक्रिय रहेंगे, राइट। व्याख्या भी हम करते हैं, विधि में प्रसंग भाव विस्तार जोड़ना, थोड़ा डिटेल में हम उनको बताएंगे, बीच बीच में प्रश्न भी पूछेंगे। मौन वाचन का समय दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही पूरी क्लास में आपने 1 घंटे का 40 मिनट का मौन वाचन दे दिया, 2 मिनट्स, 1 मिनट, इट डिपेंड्स क्लास टू क्लास। तो आप मौन वाचन कराकर आप किसी भी बच्चे से चेक करवा सकते हैं। बच्चे पता क्या कहेंगे, मैंने पूछा बेटा किसी को कोई डाउट है, कहते नहीं, उनको डाउट होता ही नहीं है। इससे दो अर्थ है, या तो वो बहुत ज्यादा होशियार है या कुछ भी नहीं पढ़ा। तो कुछ विद्यार्थी पूछते हैं, एवरेज गाइड की मैं बात कर रही हूँ। तो मौन वाचन का उनको मैंने 2 मिनट का टाइम दिया था, बेटा आपने मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा उस 2 लाइनों से संबंधित, तो फिर हमें पता चल जाएगा, हम उस बच्चे को पकड़ सकते हैं। पकड़ सकते हैं मतलब उसको हम ठीक कर सकते हैं, उसको थोड़ा शाबाशी दे करके, बेटा कोई बात नहीं, अब दोबारा से एक बार पढ़ लो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें बच्चे केंद्रित, छात्र केंद्रित शिक्षण हमें देना है। ये नहीं कि हमने पढ़ाया और हमारा रोल खत्म हो गया। तो भूमिका निर्वाह भी करवा सकते हैं, अभिनय, जिससे पात्र जीवंत फील होता है। बच्चे अभिनय करेंगे, उनको लगेगा मैं तो आज अकबर बन गया, मैं तो आज जहांगीर बन गया, मैं तो आज एक पंछी बन गया। तो उनको अपने आप एक्ट जो होता है वो प्ले करने में उनको बहुत अच्छा लगता है, उनकी रुचि होती है। रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, माता पिता के साथ बात करेंगे, चर्चा करेंगे। वैसे कभी भी कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन कल मेरी क्लास में रोल प्ले है, मुझे पक्षी वाली ड्रेस चाहिए, हरा रंग का मुझे तोता बनना है, तो कुछ ना कुछ तो ट्राई करेंगे, सोचेंगे। तो हमें शिक्षक को प्रभावी कैसे बनाना है, तो हमें उन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डिजिटल वीडियो। आजकल आप देखते हैं बहुत सारे हर लेसन से संबंधित वीडियो हैं, हर कविता से संबंधित वीडियो हैं, और कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी हैं। आप लेसन के अकॉर्डिंगली उनको यूज कर सकते हैं। और ई लर्निंग से सुनने बोलने का कौशल विकास भी होता है। आप क्लास में कुछ भी ऑडियो सिखा दीजिए, श्रुत अर्थ बोध ग्रहण उसे बोलते हैं, उसकी परीक्षा भी ली जाती है। हम उनको सिखा करके उससे उनकी सुनने की पार, लिसनर, एक अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है, ऐसे कौशल का विकास करता है। जरूरी नहीं कि हमें परीक्षा ही लेनी है उसी बेस पर। कभी भी क्लास में जाकर मैं 2 मिनट का उनको वीडियो सुना देती हूँ, किसी से भी संबंधित, क्योंकि कहीं ना कहीं तो चेंज जुड़ेगी, भाषा तो भाषा ही है। तो छात्र केंद्रित तकनीकें, मेरी क्लास में कितने बच्चे अभिनय करने में सफल हो पाते हैं, श्रोतत बोध में कितने बच्चे ठीक तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लास टू क्लास हम अपनी इन गतिविधियों को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, राइट। तो अनुभवात्मक शिक्षा क्षेत्र कार्य या परियोजनाएं जो हमारी होती हैं, कविता पर आधारित हो सकती है। कविता को नाटक की शेप में बदल दो, कहानी को नाटक की शेप में बदल दो। एक बार मुझे याद आ रहा है, हमारी एक संगोष्ठी थी डीपीएस द्वारिका दिल्ली में, तो मैं बहरीन से आई थी, और वहां पर सब मतलब अलग अलग छोटे छोटे मतलब कंट्रीज के जो जो रिप्रेजेंटेटिव थे, कुछ कुछ टीचर्स आए थे। तो उन्होंने हमें एक ये एजेंडा दिया रात को कि आप एक बुकलेट सी दे दी हमें 25-30 पेजेस की, और बोले इसके ऊपर आप कुछ भी एक्टिविटी करो। तो हमने उसके ऊपर नाटक भी किया, रात रात में सब कुछ हमने डायलॉग संवाद वगैरह लिखे। तो मैंने उसके ऊपर एक कविता लिखी थी पूरी उसके ऊपर। तो जिस बच्चे की जिसमें रुचि है, आपने एक छोटी सी कविता पढ़ाई, उनको बोलो इससे मिलती जुलती 4 लाइन की बेटा कोई भी कविता लिख लो, कोई टॉपिक नहीं मैं दे रही, अपनी रुचि से लिखिए, कुछ ना कुछ वे लिखेंगे। हाँ, हमें थोड़ा उनको गाइड करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम आत्मिक रूप से उनके साथ जुड़ेंगे तभी बच्चे जुड़ पाएंगे। सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान से ये चीज संभव नहीं हो पाएगी। तो समस्या समाधान से लेकर वाक्य रचना तक बहुत सारी चुनौतियां हैं। मेरे साथी जानते हैं, कोई 3rd पढ़ा रहा होगा, कोई 4th, कोई 9th, कोई 10th। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ता है तो ग्रामर के टॉपिक्स में भी उसी तरह से विस्तृत रूप में हमें जानकारी देनी पड़ती है। वाक्य एक छोटा बच्चा बना रहा है, बिल्कुल छोटा है, आ जा, उसके लिए यही वाक्य है, आ जा, थोड़ा रुक रुक के बोलिए, आप आ जाइए। बड़े हो जाते हैं वाक्य, कक्षा 10 में अलग अलग वाक्य हैं, पुस्तकों में अलग अलग वाक्य हैं। तो उनकी सहभागी शिक्षा में
समूह के रूप में अगर हम गतिविधियां कराएं और उनको रचनात्मक लेखन पे थोड़ा जोर दें, बहुत लंबा लेख नहीं, 2 या 3 लाइनें ही लिखवाएं, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका विद्यार्थी कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, उसको कितनी और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। हिंदी व्याकरण जो शिक्षण है उसमें हमें छात्रों को रटने से बचाकर व्यवहारिक कौशल, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और आगमन विधि, जैसे विधि द्वारा एक वाक्य दे दिया हमने कि राकेश घर गया, श्री बाजार गई, तो अब आप इसमें से किसी भी तरह की कोई भी गतिविधि करा दिए, चाहे उनसे वाक्य मिश्रित वाक्य बनवाइए, इस तरह के संबंधित कोई और वाक्य बनाओ। आपने ऐसा वाक्य कहीं और सुना था? तो बहुत सारे लोग बोलते ही हैं घर में, मेरे पिताजी बाजार गए, मेरा भाई बाजार गया, वो भी बाजार गई। तो किसी भी तरह से आप अपनी कक्षा में अपने लेवल के अनुसार कराएंगे, और नियम आप खुद भी बना सकते हैं, बच्चों से भी बनवा सकते हैं। अगर हम बच्चों से बनवाएंगे तो शायद वो ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, उसमें रुचि लेंगे। तो साहित्य संसर्ग से संबंधित मनुष्यता कविता जैसी है पढ़वाकर, उसमें से संधि समास मतलब व्याकरण को साथ में हमें लेके चलना है, ताकि जब हम संधि और समास पढ़ाएं तो मुझे अलग से वो चैप्टर ना लेना पड़े, एकदम बच्चे के दिमाग में क्लिक होगा पूर्व ज्ञान के आधार पर कि मनुष्यता कविता में टीचर ने मुझे बताया था कि संधि समास को अंडरलाइन करो, क्योंकि 8th में भी संधि पढ़कर आ रही है। वो भूल जाते क्योंकि हम ही उन्हें रिवाइज नहीं करवाते। तो हम कहते हैं कि टीचर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, वो तो उनके सिलेबस में नहीं है। अरे सिलेबस क्या, व्याकरण तो एक के साथ एक चेन की तरह से जुड़ा हुआ है एक टॉपिक। अगर मुझे विकारी अभिकारी नहीं आते तो क्या मैं बच्चों को क्लास में पदबंध या पद परिचय या संधि समास कुछ करवा पाऊंगी? अब संधि तो पूरी वर्ण विच्छेद के उसी पैटर्न में जुड़ी हुई है। तो अगर मुझे वर्ण विच्छेद बच्चे को ठीक तरह से नहीं आ रहा, समझाना नहीं आ रहा, किस विधि से प्लस का निशान बीच में डालना है, और वो नहीं डाल रहा संधि में, हलंत नहीं लगा रहा उसकी वैल्यू, क्योंकि हमने उसको बताई नहीं कि हलंत, वो क्या कहता है मेरे पास आंसर शीट लाकर, सिर्फ एक हलंत तो नहीं नीचे डाला, बाकी तो मेरा सारा आंसर सही है। बेटा हलंत ही तो संधि के बीच में क्या हो रहा है, अक्षर को आधा शो करने के लिए ही तो हम हलंत डाल रहे हैं। वर्ण विच्छेद में इसका मतलब बच्चा ठीक से याद नहीं कर पाया उस चीज को। तो खेल पर आधारित हम गतिविधियां कर सकते हैं रचनात्मक, बच्चे खुद कार्ड्स बना सकते हैं, शब्द कार्ड बना सकते हैं। एक बार मैंने कक्षा में एक शब्द लिख दिया बोर्ड के ऊपर, दूसरी कक्षा में मैंने कहा बेटा आप अपनी तरफ से एक शब्द लिख दो, कुछ भी आके बोर्ड पर, एनी वर्ड, कोई भी शब्द। उन्होंने शब्द के अंतिम वाले वर्ण से अलग शब्द, शब्द सीढ़ी बनवाई। तो शब्द सीढ़ी बनवा ली। आई थिंक आप लोग भी ये करते होंगे, शब्द सीढ़ी बनवा लेते हैं। क्या किसी ने बनाई है शब्द सीढ़ी क्लास में आप में से? कभी आपने बच्चों के साथ शब्द सीढ़ी, बहुत इजी सा गेम है, आपने करवाया जरूर होगा। क्या कोई बता सकता है आपने शब्द सीढ़ी, अगर आपको याद है अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर कि आपने कक्षा में शब्द सीढ़ी कराई थी, तो आपने उसको कैसे करवाया था, कोई शेयर करेगा इन वेरी शॉर्ट? क्योंकि इससे संबंधित मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताने वाली हूँ, तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ वेरी यस शॉर्टली। मैम, मैंने क्लास क्लास 1 में करवाया है। जैसे मछली, पहले मछली लिखा, फिर जी जी। ली से लीची, फिर ची से ओके। चीता, फिर त से तारा, र से हम्म। रानी, ऐसे करके बच्चों ने बहुत एंजॉय किया था उसको। या ये इट इज वेरी कॉमन एक्टिविटी, राइट मैम, आपने बिल्कुल सही बताया है। लेकिन एक मेरा इसमें थोड़ा सा सजेशन है, हो सकता है कि आपने सही बताया, कई बार क्या होता है जो लास्ट वाला लेटर होता है ना, जैसे आपने लीची सही बोला आपने, लेकिन कई बार क्या होता है किसी शब्द का अंत ल को छोटी मात्रा से हो रहा है, तो कुछ बच्चे बड़ी से भी बना देते हैं, तो हमें एक वो ध्यान रखना है। और आई थिंक अलका मैम ने बताया था ना अभी कक्षा 1 में जो बनाया है। यस मैम। यस। मैम जब आपके बच्चे क्लास में एक्टिविटी कर रहे थे, जब उन्होंने दिखाया आपको, तो आपको थोड़ी संतुष्टि हुई बच्चों को देखकर कि उन्होंने मतलब रचनात्मक कार्य बहुत अच्छी तरह से किया? मतलब आपको कैसा लगा बच्चों का ये रिस्पॉन्स देखकर? यस मैम। मैम बहुत अच्छा लगा, लेकिन बच्चों ने लिखा नहीं था क्योंकि वो क्लास 1 के है ना, ये स्टार्टिंग में ही हुआ हाँ था। हाँ ठीक है ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया और मैंने बोर्ड जी पे लिखा। ठीक है। अगर आप इमेजिन कर सकते हैं या कोई और मतलब टीचर जो 6th 7th या 8th 9th को पढ़ाते हैं, उनमें से कभी किसी टीचर ने ऐसी एक्टिविटी कराई है? क्योंकि अलका मैम ने तो शायद फर्स्ट के बच्चों को, ठीक है वो अपना अनुभव उन्होंने बताया, लेकिन मैं चाहूंगी कि अगर कक्षा 6 से 10 का कोई शिक्षक या शिक्षिका उसने अपनी कक्षा में ये गतिविधि कराई हो, किसी भी टीचर ने। ओके चलिए ठीक है।
करवाई है या आप शेयर नहीं करना चाह रहे, या जो भी है, क्या होता है उसमें गतिविधि तो सब कराते हैं, अलका मैम ने भी कराई है। अलका मैम, जब बच्चे कर रहे थे गतिविधि, चाहे जैसा भी आपने करवाई गतिविधि, आपने कहा कि मैंने बोर्ड पर लिखा, ठीक है, क्योंकि स्तर के हिसाब से बिल्कुल ठीक आपने किया। मैं बड़ी क्लास का एग्जांपल दे रही हूँ, जब बच्चे शब्द लिखना सीख जाते हैं, काफी शब्द लिख लेते हैं वो, इवन 30-40 भी बना लेते हैं, तो मैं उनको बीच में बुलाती हूँ, बेटा जस्ट शो मी, और मैं बीच में राउंड भी लेती हूँ। तो क्योंकि वो गलत बना रहे हैं ना मैम, जैसे मैंने लास्ट वाला अल्फाबेट आपको कहा, तो वहां अगर गलती हो जाएगी तो बच्चे की मेहनत सारी बेकार है। मेरे कहने का अर्थ है, ये समझाने का है कि बहुत सारे शिक्षक गण इस तरफ ध्यान नहीं देते कि लास्ट वाले लेटर वो बच्चे वहां पे गलत कर देते हैं, ई या ई की मात्रा से छोटी या बड़ी की, एक वो ध्यान रखना है। और सेकंड, जो बड़ी दिलचस्प बात जो मैं आपको बता रही हूँ, आप सभी शिक्षक हैं और मैं गतिविधियां देख रही हूँ क्लास के अंदर, ये शब्द सीढ़ी वाली, और टीचर तो देख रहा है, मैं खुद भी बनाती हूँ। मैंने भी 500 शब्द लिख के बच्चों को दिखाए बोर्ड के ऊपर। मैंने कहा बेटा आप अपने मुंह उल्टे कर लो, डेस्क उल्टे कर लो, आप अपनी शब्द सीढ़ी बनाओ, मैं इधर बना रही हूँ। तो बच्चों को ये फील हुआ टीचर भी काम कर रही है, सिर्फ माइंड ही नहीं करी, कुछ कुछ एक्टिविटीज के लिए बोल रही हूँ मैं, सारी एक्टिविटीज के लिए नहीं बोल रही। तो बच्चों ने देखा, मैंने कहा बच्चों इसमें देखो, नोट करो, सीखो, उनको कुछ नियम भी बता दिए बाद में, मतलब। तो अगर टीचर थोड़ा एंगेज होगी ना साथ में, आई थिंक बच्चे ज्यादा रुचि लेंगे, क्योंकि उनके मन में ये होता है टीचर तो खड़ी है, कुछ भी नहीं कर रही, घूम ही रही है। माँ बाप तो सिर्फ फिल्म ही देख रहे हैं, हमें ही कहते हैं पढ़ो 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 पढ़ो। ऐसे बच्चों के अंदर ये एक चाइल्ड साइकोलॉजी की मैं बात कर रही हूँ, मनोविज्ञान की बात कर रही हूँ। तो थोड़ा सा अगर अगर हम उनके साथ मिलकर थोड़े उनको ऐसे करके उनकी पेंसिल के साथ उस शब्द को ठीक कर देंगे, तो वो और उसमें दिलचस्पी लेती है। तो प्रोजेक्ट एवं मूल्यांकन गतिविधियां वाक्य निर्माण प्रोजेक्ट पे करवा सकते हैं, क्विज खिलवा सकते हैं फ्लैश कार्ड के रूप में, पोर्टफोलियो में भी हम ये काम को करा सकते हैं, अलग अलग क्लासेस के अलग अलग सिलेबस के अनुसार भी आप करा सकते हैं। हिंदी व्याकरण गतिविधियां कक्षा 3 में, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जानवरों के चित्र दिखाकर, ह से हाथी चित्र हम इकट्ठे जंबल कर सकते हैं, ब से बकरी अल्फाबेट्स भी सिखा रहे हैं या उनसे ढूंढवा सकते हैं। वर्णमाला पहेली सॉल्व करवा सकते हैं, जैसे कागज गेंद बनाकर अक्षर फेंक रहे हैं, उसके ऊपर लिखकर, या अल्फाबेट भी लिखकर फेंक सकते हैं, तो बच्चे, छोटे बच्चे इसको एंजॉय करते हैं। अलका मैम शायद आप मुझसे सहमत होंगी, तो आप यस इस तरह की मैम। गतिविधि भी क्लास में करवा सकते हैं। और थोड़ी बड़ी कक्षाओं में संज्ञा सर्ण गतिविधियां, उनको नाम पूछकर, कक्षा में जो वस्तुएं हैं, आपका टेबल होता है, आपके पास है, मेज है, छू कर बच्चों को, छोटे बच्चों को छू कर बताइए कि देखिए ये संज्ञा है, और समूह में बांटकर उनसे कहिए कि 4 या 5 संज्ञा के नाम लिखिए। क्लास के अंदर ही उन्हें सारे ग्रामर के चैप्टर अधिकतर मिल जाएंगे। आई थिंक छोटी कक्षाओं में जहां तक विकारी है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इवन अविकारी ग्रुप भी क्रिया विशेषण और तीनों बोधक उनको कक्षा के अंदर से ही मिलेंगे। ये थोड़ी सी हमें मेहनत करनी होगी हम शिक्षकों को। सर्वनाम चेन में हम कह सकते हैं, मैं खेला, वे दौड़ा, उन्होंने खाया, ऐसे वाक्य और बनाओ। लिंग वचन क्रिया में भी इस तरह से करा सकते हैं, अभिनय करवाकर। वचन से रिलेटेड भी हम, जैसे एक बाल, अनेक बाल, चित्र बनवाकर, दौड़ो, बैठो, छोटे बच्चे एकदम से दौड़ रहे हैं, उनको कह दो बैठो, तो बेटा आपने यह क्या किया, क्रिया। इवन आई थिंक 6 तक भी हम ये गतिविधि करा सकते हैं। अब विलोम की जोड़ियां बनाना, वो भी आप कार्ड्स मिला करके उनको खिला सकते हैं। पर्यायवाची शब्द ये आप सब जानते ही हैं। दैनिक जीवन से संबंधित, मतलब कोई भी जीवन कहानी, जैसे सूरज उगा, चंद्रमा अस्त, एग्जाम्पल जोड़कर छोटी कहानी बुलवाना या लिखवाना। तो कक्षा के हिसाब से, आप अपने विद्यार्थियों के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली आप इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। और कार्य पत्रिकाएं या कार्य पत्रक मूल्यांकन के लिए रिक्त स्थान संज्ञा में रंगीन पहेलियां उनको दे सकते हैं, या उस पहेली के ऊपर वो कागज चिपकाकर बच्चे खुद भी बना सकते हैं आपस में ग्रुप में। और तालियां बजवाना ना भूलिए, क्योंकि तालियां से उत्साह बढ़ता है। अगर एक बच्चा कविता बोल के चला गया और तालियां बजी ही नहीं, दूसरा बच्चा जब आया, शायद उसके मित्र ज्यादा थे वहां पर, कि मेरी ये फास्ट फ्रेंड है, मैं तो बहुत ज्यादा तालियां बजाऊंगी। तो हम शिक्षक शिक्षिकाओं का ये कर्तव्य है कि हमें हर एक को प्रोत्साहित करना है, किसी एक को नहीं। और अब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कक्षा 10 के टोपी शुक्ला गद्य, मनुष्यता कविता और संधि ग्रामर, तीनों को जोड़कर छात्र केंद्रित आसान गतिविधियों पर आधारित, जैसे हम कहानी का सार पढ़वाना। सार भी कुछ बच्चे लिखकर, जो अच्छे बच्चे क्लास में, वो सार लिखकर आएंगे, चाहे वो शॉर्ट में लिखकर आए, टीचर भी थोड़ा तैयार करके उनको कक्षा में पहले सार बता देंगे, तो शायद कुछ बच्चे इस विधि को बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, उन्हें जल्दी समझ आ जाएगा।
तो टोपी के जीवन का संघर्ष है, संघर्ष आपके जीवन में कोई संघर्ष हुआ या संघर्ष से संबंधित, जैसे अग्निपथ है 10th में, उससे हम रिलेट करके कविता के साथ, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि टोपी शुक्ला गद्य है और वहां पर अग्निपथ कविता पद्य से हम उसको रिलेट करके संघर्ष, तो मनुष्य जीवन ही संघर्ष का नाम है, संघर्ष से संबंधित अनुच्छेद लेखन आप यहाँ पर करवा सकते हैं, उससे चर्चा कर सकते हैं। बच्चों से पूछिए मैम, आप सर जितने भी लोग देख रहे हैं, आप बच्चों से पूछिए कि संघर्ष से संबंधित हमें टॉपिक मतलब सुझाइए किस एरिया से, तो बच्चे खुद बताएंगे आपको। समूह में चर्चा करें, नाटक भी कर सकते हैं, कोई दृश्य चुने, उन्होंने कोई इंग्लिश में कोई कहानी पढ़ी थी, राइट, इंग्लिश की कहानी के अंदर से उनको कोई सीन याद आ गया संघर्ष वाला, तो हिंदी की कक्षा में भी चर्चा कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, राइट। तो सब देखते हैं और उनसे निबंध, मतलब जैसे मैंने ये एक प्रयोग किया था, टोपी आज के शहर में, तो अगर टोपी जो आज के शहर में अगर आ जाता है, मतलब अपने तरफ से, आप जानते हैं ना लघु कथा है, कहानी को पूरा करना होता है या कल्पना शक्ति के विकास करने के लिए आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखा है आप वही, आप इसको चेंज करके अपने अकॉर्डिंगली बच्चों से इस प्रकार की गतिविधियां करवाकर कक्षा को और रोचक बनवा सकते हैं। तो अब टोपी का मुझे एक बच्चे ने कॉमिक स्ट्रिप बनाकर दिया और उसमें उसने छोटे छोटे से वो कार्टून टाइप बना दिए और हिंदी में थोड़े स्पेलिंग उनके गलत थे, मैंने उनको चेक किया, लेकिन उन्होंने गतिविधि मुझे करके दिखाई, कार्टून बनाए, समूह में शेयर किया, किसी ने कार्टून बनाए, मतलब ये गतिविधि की, कोई टोपी का चित्र बना के ले आया, किसी ने खुद अभिनय किया अलग अलग, मतलब करेक्टर्स बना करके, या किसी ने आके टोपी के बारे में कुछ बोल दिया, जो भी उनकी विषय। तो मतलब सब कक्षा में बच्चे खुद ही समूह बना लें जिनकी जिसमें रुचि है, तो आपस में एक दूसरे से देखकर सुनकर वो सीखेंगे। सामाजिक टाइप के पोस्टर बना सकते हैं, थीम लेकर, थीम बेस पर। अब जैसे टोपी जो है उसको डायरी की तरह से, मतलब टोपी का जीवन कैसा है डायरी के रूप में, ये भी एक विधा है, डायरी का एक पन्ना भी है लेसन, और डायरी एक विधा भी है हमारी। तो आप बच्चों को थोड़ा सा बताएं, चाहे वो उनके सिलेबस में है या नहीं, थोड़े शब्दों से नोन हो जाए, तो सहकर्मी जो है उनके वो वोटिंग कर सकते हैं, आप उनके सामने सबको मूल्यांकन करके उनको प्रस्तुत कीजिए, उनको दिखाइए, और उनसे थोड़ी सी अगर वोटिंग करा लेंगे तो उनमें एक उत्सुकता की भावना होती है, पता नहीं इस बार कौन जीतेगा, कौन सा वाला ग्रुप जीतेगा, किसकी एक्टिविटी अच्छी हुई। तो हमें मूल्यांकन में यही समझाना है, बेटा सबकी एक्टिविटीज अच्छी थी, बस हम देख रहे थे कि आप किसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो उनको फिर सिखाना कि इस तरह से नहीं, सबकी एक्टिविटीज अपनी अपनी जगह पर अच्छी थी, जैसे एक माँ एक पिता अपने घर में अपने बच्चों को समझाते हैं। अब हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सब टीचर्स को पता ही है, लेकिन कुछ मतलब संकेत बिंदुओं की तरह से मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ। छात्रों के संज्ञानात्मक स्तर जो है, स्मरण जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण, मूल्यांकन, ये इसके चरण है, को क्रमबद्ध तरीके से विकसित करती है। ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ये सरल बिंदुओं में एनईपी के अनुरूप है और हमें वो करना चाहिए। तो टोपी शुक्ला से मतलब रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। स्मरण, कहानी के मुख्य तथ्य याद करें, बच्चों से ऐसे क्वेश्चन पूछ लीजिए, टोपी कौन है, घटनाएं, और उसकी जो सूची एक बना लो, दो सिर्फ वर्ड्स में, सेंटेंसेस में बाद में पूछ सकते हैं। तो एक बार अगर हम बच्चों को थोड़ा बता देंगे तो ये उनके समझने में भी, अगले वाले लेसन में भी वो खुद ये काम करना शुरू कर देंगे। और उसका अब उनको कितनी समझ आई, मैंने एक पेज पढ़ाया आज क्लास में, तो बेटा एक पेज से रिलेटेड आप मुझे 3-4 लाइनें बता दीजिए, मूल्यांकन कर दो अपनी तरफ से, आपको क्या समझ आया, चाहे 2 लाइनें बनाइए, चाहे 2 शब्द बोलिए, हर बच्चे को आप मतलब कक्षा में उत्साहित कीजिए कि वो भाग ले। सारे हमारे विद्यार्थी वाक्य नहीं बना पाएंगे, कोई बात नहीं, मुंह से बता दें, बोल के बता दें, लिख कर बता दें, कुछ शब्द बता दें, जो भी उनको सही लगे। गरीबी थीम के ऊपर क्यों महत्वपूर्ण, मतलब आपको ये जो थीम है क्यों महत्वपूर्ण लग रहा है, गरीबी से संबंधित, अमीरी से संबंधित आप कुछ अपनी बातें बता दीजिए। जीवन में कई बच्चे पता है अपना अनुभव भी बताना शुरू कर देते हैं, तो बहुत अच्छी चीज है, शायद हम शिक्षक भी उनसे सीख लेते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं। माइंड मैप आप सब जानते हैं, बहुत मतलब ये तो काफी पुरानी हो गया, हम लोग बनाते ही हैं अपनी क्लास में। तो माइंड मैप को कभी मत आप भूलिए। भूमिका के रूप में दृश्य अभिनय पर सामाजिक मुद्दा उनको कोई दिखाकर, अगर आपके पास अपनी कोई वीडियो है या ऑडियो है, उनको सुना सकते हैं, नेता से संबंधित, या कभी कभी बच्चों को कहिए बेटा समाचार देखिए, उसके अंदर भी उनको काफी हेल्प मिलेगी। तो पात्रों की प्रेरणा, पात्रों से प्रेरणा लेनी, तुलना करनी कि टोपी और अगर कोई अन्य कोई और हो तो आप उसकी कैसे तुलना कर सकते हैं, कारण बताइए कि आप इसकी तुलना क्यों कर रहे हैं, आपको कौन अच्छा लग रहा है,
उसका क्या परिणाम निकला, उसके क्या चार्ट है, सब चीजों को लिखवाने की जरूरत नहीं है। ये अपने दिमाग में वो सोचेंगे और मौखिक रूप से भी क्लास में अपनी अभिव्यक्ति बता सकते हैं। फिर कॉमिक स्ट्रिप रचे, नया अंत जोड़े, मतलब कई बार कुछ कहानियां होती हैं उसका अंत ठीक से बताया नहीं होता, वहीं पर ही अधूरी सी लगती है, तो उनको विद्यार्थी खुद बोलें, खुद समझें, खुद बनाएं, छोटी सी कथा लिखें, या कक्षा में मिलकर कक्षा का एक बच्चा एक वाक्य बोले और उसी से पूरी कहानी की रचना हो जाए पूरी क्लास में। तो उस रूप में भी आप कहानी को एक कॉमिक टाइप में, जो बच्चे ड्राइंग में अच्छे हैं, शायद कुछ बच्चे बोलने में अच्छे नहीं होते, उनसे ड्राइंग का काम करवा ले, राइट। और जो बोलने वाले हैं वो दूसरों को सहायता कर देंगे लिखने के लिए, जिनकी राइटिंग अच्छी होती है तो वो उसको पार्टिसिपेट करेंगे। और आप अपने मतलब सूचना जो पट है आपका, जो कक्षा के बाहर है, उसके ऊपर आप हर कविता या कहानी से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर लगा सकते हैं। और शायद हम ये टीचर्स की एक विडंबना सी रही है कि जब कोई चेकिंग के लिए आता है स्कूल में तो कहते हैं कि सूचना पट भरो, जल्दी से लगाओ, खाली है आपका सूचना पट। उस टीचर ने तो इतना डेकोरेट कर लिया, हिस्ट्री की कुछ चीजें लगा ली। तो मेरी तो ये सलाह है कि हिंदी का अध्यापक जितना सूचना पट को सजा सकता है शायद ही कोई और सजा सकता है। हिंदी में तो इतने विषय हैं, इतने विषय हैं, पूरी की पूरी जो मतलब चीजें हैं, अन्य विषय वो हिंदी के अंदर भी हम मतलब ट्रांसलेट करके थोड़ा सा, जैसे विज्ञान में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था किसी बच्चे ने, और मैंने कहा बेटा इसकी विधि क्या है, उसने मुझे इंग्लिश में बताई। सो मैंने कहा किसी इसी तरह से कोई भी सिंपल सी एक विधि ले लो, कोई भी विधि ले लो, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। बोला मैम मैं चाय बनाने की विधि कर लूं, मैंने कहा यस क्यों नहीं। तो उसने चाय का चित्र बनाया, किस किस को मिश्रण किया, केमिकल टाइप उसने रिएक्शन उसमें दिखाया। तो उस तरह से बहुत अच्छा उसने एक अजीब सा मतलब चित्र प्रस्तुत किया। तो बाहर बच्चे ऐसे लगा सकते हैं अगर हम उनको ठीक तरह से गाइड करें। मूल्यांकन कर सकते हैं, पोस्टर जज कर सकते हैं, मतलब बच्चों को कहिए कि दूसरी क्लास के बाहर जो सूचना पट है उनको जरा एक नजर मार के आओ, सिर्फ अपनी कक्षा तक सीमित ना रहें। ये बहुत बड़ा शायद हमारा नेगेटिव पॉइंट है, हमारी कमी है, हम अपनी कक्षा को ही अच्छा बनाने में लगे रहते हैं। मेरा कमरा सुंदर नजर आना चाहिए सारी तरफ से, मेरी कक्षा अच्छी होनी चाहिए। अरे दूसरों की कक्षाएं जाकर के देखिए, बच्चों को ये बताइए, रिसेस में या कभी भी टाइम मिले आप जाकर चेक कीजिए क्लासेस, तो वहां से उनको कुछ आइडिया भी मिलते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण बनता है। ये नहीं कि मेरी क्लास सबसे अच्छी है, आई एम द बेस्ट, ये तो कभी भी नहीं होता, हर एक में कमी है, तो हमें उसको सुधारना है, उनका मूल्यांकन उनको करना सिखाइए। अब इसके ब्लूम टेक्नोलॉजी के मेन है याद करना, पूर्व ज्ञान पर आधारित, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम पंछी उन्मुक्त गण के कविता पंछियों से संबंधित है, राइट। स्वतंत्रता की फीलिंग, जब हम कोई भी पाठ पढ़े उससे हम जोड़ें, कितनी समझ आई, बच्चे प्रश्नों का उत्तर बीच बीच में से देंगे जब हम उनसे पूछेंगे, और कितना वो अप्लाई कर रहे हैं अपने जीवन में, अपने जीवन से संबंधित अध्यापक भी बता सकते हैं, बच्चे भी बता सकते हैं। उसका विश्लेषण करें कि मैंने जो बताया वो सही था, उसमें मेरी कितनी गलतियां निकली, मुझे उसको कैसे सुधारना है। शिक्षक भी मूल्यांकन कर सकते हैं, बच्चे भी पेयर टीम में मूल्यांकन कर सकते हैं, आपस में बता सकते हैं, और सही उत्तर आप लिखवाते ही होंगे बोर्ड के ऊपर, उसको देखकर बना सकते हैं। और फिर कुछ क्रिएट करना, अब मैंने क्लास में अगर कोई भी लेसन पढ़ाया है तो मैंने ग्रामर का लेसन पढ़ाया उनको, संधि, तो बेटा संधि के ऊपर कुछ भी आप क्रिएटिव वर्क कीजिए। बेचारे बच्चे तो चुप हैं बिल्कुल, क्या वर्क करूं संधि के ऊपर, संधि के फॉर्मूले लिखूं या क्या। तो मैंने उसको बोला बेटा दीर्घ संधि आप कैसे सोचेंगे, ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, दीर्घ संधि। सो अ प्लस अ एक ही ग्रुप में ले रही हूँ, आप इसको समझ लेंगे तो आप हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं दूसरी कक्षाओं में भी। सो अ छोटा अ प्लस छोटा अ इज इक्वल टू बड़ा अ, राइट, उसकी मात्रा यूज होती है। इधर वन छोटा वन बड़ा, बहुत बड़े बहुत छोटे, सबको पता है जो टीचर्स पढ़ाते हैं। तो वहां पर मैंने आपको कहा बेटा आपको ये समझना है इसमें एक ही ग्रुप काम कर रहा है, उसका आंसर है बड़ा ग्रुप, आंसर है बड़ा ग्रुप, मीन्स 1+1=1 स्क्वायर। तो मैंने रूल उनको बनाए बताए। अब जैसे किसी में है 1+2=3, न्यू ग्रुप है, इसमें गुण संधि है, वृद्धि संधि, 1+2 स्क्वायर 2=2 स्क्वायर, वृद्धि हो रही है, तो उनको समझाना। तो मैंने गणित से जोड़कर ऐसी एक गतिविधि कराई थी, तो बच्चों ने भी मुझे अपनी तरह से गतिविधियां करके बताई। तो मैं संधि की बात कर रही थी, संधि के ऊपर गतिविधि करो, तो गतिविधि बहुत कम बच्चे कर पाए, मैंने फिर उनको आइडिया दिया, मैं सिर्फ उनको छिड़काती हूँ, ऐसे कहते हैं ना कि ऐसे थोड़ी सी बुखार कर दो। तो मैंने कहा बेटा संधि का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज करना, कहानी लिख दो, उस राजा ने उसके साथ संधि की, एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। संधि ग्रामेटिकली मुझे पता चल गया, लेकिन संधि का मीनिंग तो मुझे आता ही नहीं है कि संधि होती क्या है।
संधि का मतलब है जोड़ना, इट्स ओके, ग्रामर की बुक में भी लिखा है जोड़ना। साहित्यिक अर्थ क्या हुआ? जोड़ना, जुड़ जाना, स्ट्रेंथ की भावना, एकता की भावना। तो मैंने सारे अनुच्छेद लेखन यहाँ कवर किए। संगठन में शक्ति है बताते हुए अपने भाई को पत्र लिखिए। यूनिटी में ही सब चीजें फलती हैं, बड़े भी कहते हैं। संयुक्त परिवार होते थे पहले, आज हम उसी मोड़ पर, उसी कगार पर आ खड़े हैं दोस्तों। बहुत दुख की बात है, एकल परिवार फेमस हो गए हैं, बहुत ज्यादा चलन हो गया उनका। लेकिन आज जब मेरे बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है ना, तो मुझे याद आता है कि अगर मेरी सास होती, मेरी जेठानी होती, या कोई भी बड़ा होता, तो कितना आसरा होता, कितना शेल्टर होता। तो जो हमारा संयुक्त परिवार है, हमने शायद उसको रूढ़ी मान लिया। आज की नव पीढ़ी ने, यही रीजन है आज की नव पीढ़ी शादी करना नहीं चाह रही है। मुझे कहते हैं बहुत दुख हो रहा है, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे हों, क्योंकि नौकरी में हस्बैंड वाइफ दोनों ही नौकरी में बिजी हैं, सुबह जाती हैं शाम को आते हैं, उनको परिवार नहीं चाहिए। तो एक साहित्यिक माहौल जब तक हमने उन बच्चों को नहीं दिया, नैतिक मूल्यों से अगर वंचित रखा, तो मेरे बच्चे बड़े होकर ना तो अपना कैरियर बनाएंगे, अगर बना भी लेंगे नैतिक मूल्यों से बिल्कुल परे। हम भी माँ बाप हैं, किसी के बच्चे भी हैं, तो हम कहाँ संतुलन अपना कर पाएंगे? वृद्धाश्रमों में। तो ये बहुत शोचनीय अवस्था है हमारे समाज की, हमारी इस नव पीढ़ी की। तो कोई भी बच्चा गलत नहीं होता। जो हम शिक्षक है ना, शायद हम में ही ये कमी है। तो हम पता क्या कहते हैं अपने को बचाने के लिए? माता पिता को कह देते, पेरेंट्स को, आप भी देखो, इट्स ओके। ज्यादातर बच्चा हमारे पास रहता है स्कूल में सुबह से लेकर दोपहर तक। ठीक है, माता पिता का भी सहयोग है, मैं ना नहीं कर रही, लेकिन हमें अपना कर्तव्य निभाना है, उनको नैतिक मूल्य सिखाने हैं। एक हिंदी का विद्यार्थी उनके जीवन को बना सकता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके इतने बड़े ग्रुप्स हैं, कोई पढ़ करके यूएस में सेटल है, कोई कहीं है, लंदन में है। हमारी एक मीटिंग होती है, मैं गूगल मीट करती हूँ 3 या 4 बार, मतलब मंथ में मेरी ये कोशिश होती है। सबके टाइमिंग्स अलग अलग हैं। यही है कि उन्होंने नैतिक मूल्य सीखे हुए हैं, आज वो उनको जीवंत रख रहे हैं। तो बच्चे धूल भरे हीरे होते हैं, उन हीरों को हमें निकालना है, उनके ऊपर की डस्ट को हमें साफ करना है। ये नहीं कि पढ़ाकर क्लास से बाहर आ जाना है। हिंदी शिक्षक का कर्तव्य यहाँ पर खत्म नहीं होता। तो याद रखना है, दुख के 5 चरणों की सूची याद रखना। ये मैं ब्लूम टेक्नोलॉजी के ऊपर एक एक उदाहरण दे रही हूँ, प्लीज आप ध्यान से देख लीजिए। समझ हम कहां से परखेंगे कि उसको उपमा और रूपक के बीच में अंतर स्पष्ट हो गया। अब लागू करना है, लागू कैसे करेंगे? एक एग्जांपल है, मिला जुड़ाइए। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई की गणना करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करें। लागू करना है, अप्लाई करना है, मीनिंग ये उससे संबंधित है। विश्लेषण करना है, किसी चीज को विश्लेषित कैसे करें। एग्जाम्पल है अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति, दोनों में अंतर, तो विश्लेषण हो गया, दिस इज कॉल्ड विश्लेषण। मूल्यांकन कैसे करेंगे? एक नए उत्पाद, कोई भी प्रोडक्शन है के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग का ग्राफ देख सकते हैं, डाटा वगैरह, अभियान की प्रभावशीलता का आकलन करें, इसको मूल्यांकन करते हैं। शब्दों के अर्थ मैंने समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। बनाना, अब हम बना कैसे रहे, क्रिएटिव वर्क कैसा हो रहा है। एक नया उत्पाद डिजाइन करें जो आपके समुदाय की आवश्यकता को पूरा करता है। आपने देखा होगा दूध वाला मोटरसाइकिल पर आता है दूध देने के लिए, एग्जांपल मैं दे रही हूँ। और कभी कभी आपने देखा होगा उसके पीछे बहुत सारा ऐसे कैरियर टाइप भी बना लेते हैं, वो पूरा पूरा भरा हुआ है, सब्जी है, घर का सामान बहुत सारा लादा हुआ है, कुछ होते हैं ऐसे, मतलब सामान लोड करके लेके जाते हैं। तो ये उसका अपना क्रिएशन है, अपनी उसकी क्रिएशन है। तो मैं ये नहीं कह रही यही उदाहरण, मतलब इस तरह के उदाहरण इज कॉल्ड बनाना, क्रिएटिव वर्क, कुछ नया क्रिएट करना। तो ब्लूम टेक्नोलॉजी एक वर्गीकरण प्रणाली है जिसका उपयोग शिक्षा के उद्देश्यों के विभिन्न स्तरों की पहचान करने और उन्हें परिभाषित करने के लिए की जाता है। 1950 के दशक में बेंजामिन ब्लूम द्वारा विकसित टेक्नोलॉजी शिक्षकों को सीखने की गतिविधियों को डिजाइन करने के एक रूपरेखा प्रदान करती है, सब कुछ नहीं हमें देगी। साथियों, इस बात को याद रखिए कि हम ही टीचर्स ही सब कुछ ये कर रहे हैं। ये चीजें तो एक बाहरी रूप है, अपने आप को जगाने के लिए कर हम सब कुछ रहे हैं। आप शायद मुझसे सहमत होंगे, आज ये टेक्सोनॉमी आ गई, वो वाली आ गई, ये ब्लूम की हो गई, उसकी होगी, उसने ये कह दिया। हम क्या ये प्रयोग नहीं कर रहे? सब करते हैं, सिर्फ अपने आप को थोड़ा रिफ्रेम करना है हमें इनके आधार पर, राइट। ये प्रणाली संज्ञात्मक सीखने के 6 स्तर में आपको बता चुकी हूँ, उस पर आधारित है। और ब्लूम का वर्गीकरण जो अर्थ है, टेक्सोनोमी जो शब्द है ग्रीक भाषा का टेक्सिस से लिया गया शब्द है, और इसका अर्थ है क्रम या सजाना, क्रम, सीरियल वाइज। अब मेरे पास बहुत सारी चीजें जम्बल्ड है, तो मैं उसको सजा तो लूं। मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ रहा है, सारा बेड बिखरा हुआ है, कप यहाँ पड़ा है, हैंकी यहाँ पड़ा है,
तो मुझे उसको क्या करना है, क्रम देना है, प्रॉपर उसको हैंडल करना है, संभालना है। मेरा बच्चा बिखरा हुआ है, उसको कोई चीजें समझ नहीं आ रही उसके दिमाग में, एक्शन में, तो मुझे उसको बैलेंस करके बताना है। इस प्रकार टेक्नोलॉजी शब्द का अर्थ किसी तथ्य या विषय वस्तु को वैज्ञानिक तर्क के आधार पर सजाना। वैज्ञानिक मतलब वेरी प्रॉपरली, मैंने आपको बताया हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, ये याद रखिएगा साथियों, बहुत पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए। हिंदी जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। ये केमिस्ट्री और चटर्जी नहीं है, ये साइकोलॉजी पी से स्टार्ट होने वाला नहीं है। जैसा हम बोलेंगे वैसे ही लिखेंगे। बच्चों को ये नियम अगर हम ध्यान से बता देंगे तो शायद हमें कक्षा शिक्षण में थोड़ा आसानी होगी। शिक्षण प्रक्रिया का निर्माण इसी तरीके से किया जाता है ताकि इन उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके। परंतु प्राथमिक उद्देश्य संज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति करना है, जो हमने 6 वो पढ़े थे। स्मरण, दोबारा से मैं बता रही हूँ, लोटा प्राप्ति कैसे हुआ बच्चों, आपको याद है ना कहानी का नाम क्या है? समझ आया? क्या समझ आया? व्यंग्य, व्यंग्य है उसमें। घमंड की खिल्ली उड़ी थी उसमें, गलत फहमी का कारण था। धारणा संवाद का महत्व क्या है, मतलब बीच बीच में आप अपनी तरफ से थोड़ा परिवर्तित कर सकते हैं। घरेलू गलत फहमी पर स्किट कर सकते हैं बच्चा, जरूरी नहीं कि लोटा से संबंधित, आपके घर में कोई गलत फहमी हो गई उससे संबंधित, तो उसको विश्लेषण करो कि झाऊलाल और बिलवासी जी की तुलना, कि झाऊलाल जो है वो चतुराई से अपने मित्र को बुला रहे हैं और उनसे भी ज्यादा चतुराई हमें पंडित बिलवासी के उस कार्य में मिलती है जहां उन्होंने अपने दोस्त को भी फायदा पहुंचाया और स्वयं को भी। आप जानते हैं ना, सोई हुई थी उनकी पत्नी और संदूक में वैसे की वैसे ही ले जाकर उन्होंने पैसे रख दिए थे। मूल्यांकन कर लीजिए, बच्चों से करवा लीजिए झाऊलाल का समाधान कैसे हुआ, आपको कैसा लग रहा है। जो बच्चे का आंसर आपको क्लास में सबसे अच्छा लगा प्लीज उसे सबके साथ शेयर कीजिए। अब नया अंत हम कर सकते हैं सृजन के लिए, कि नया अंत, लोटा टूट गया तो, मतलब कहानी के अंत में हम थोड़ा डिफरेंट अंत, तो बच्चे बताएंगे ये मैंने ऐसे एग्जांपल लिखा है, आप उनसे पूछिए, उनसे अंत करवाइए। और इसके व्यंग्य की विधा के ऊपर कोई भी वो मतलब स्क्रिप्ट लिखकर या कोई नाटक प्रस्तुत कर सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे नाटक। और ये मत समझिए कि मैंने बहुत बड़ा काम मतलब सजेस्ट कर दिया आपको, बिल्कुल छोटा सा नाटक, सिर्फ 2 बातें उसमें कर दीजिए, सॉरी, अभिनय और संवाद शैली भी विकसित होगी और संवाद लेखन भी उसमें कवर होगा, अभिनय भी कवर होगा। मनुष्यता कविता को जैसे जोर से पढ़वाना, उसके भाव बताना, माइंड मैप बनवाना, नाटकीय विधि में उनको लिखवाना, ये कविता मेरे जीवन में किस तरह से काम आ रही है, लघु कथा की शेप में कर सकते हैं। रचनात्मक गतिविधियों में कुछ कुछ है कि कविता की पंक्तियों पर पेंटिंग कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स भाव दर्शाने के लिए। रैप रिमिक्स कर सकते हैं, कविता को रैप गीत बना करके, आजकल रैप का बहुत जमाना है, मतलब बच्चे लाइक करते हैं, शायद देखिएगा आप, आपको भी बहुत मजा आएगा। कोई ना कोई बच्चा कुछ ना कुछ रैप बना लेगा, चाहे उसमें गलतियां होंगी लेकिन आप उनको मौका दीजिए। संगीत के साथ गाएं, उनको रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर कागज की चेन बनाएं, हर कड़ी पर कुछ मानवीय गुण बच्चे लिख लें। एक बच्चे ने यहाँ पर लिख लिया दयालुता, करुणा, तो उनको चेन बना दीजिए क्लास में ऐसे खड़े करके। आप वॉक भी करा सकते हैं, गैलरी वॉक मानवीय मूल्यों के ऊपर, और मूल्यांकन कर सकते हैं। वीडियो प्रस्तुति उनसे करवा लीजिए, कोई बच्चा वीडियो बनाकर ला रहा है, उसके रूब्रिक्स आप देख लीजिए, आप डिसाइड कीजिए, और कैसे वो अभिव्यक्ति कर रहे हैं उनको अपने रेशो के अकॉर्डिंगली आप बांट दीजिए। फिर संधि में भी जैसे अलग अलग तरह की जो भी टीम जीते उसको विजेता पुरस्कार दीजिए। वाक्य और कहानियों के अंदर जहां पर उन्हें संधि के कुछ वर्ड्स हैं वो उनको कहिए, ढूंढिए। हम संधि चैप्टर नहीं कर रहे हैं, हम पाठ ही पढ़ रहे हैं, वो अंडरलाइन करेंगे बच्चे और हमें बताएंगे। कोई 10 वाक्य बनवा लीजिए, वो स्वयं लिखें और उनके दोस्त उनको सुधारे, और फिर उनकी नोटबुक को देखिए। 10 नहीं, आप कम भी कर सकते हैं, 2 वाक्य लिखवा लीजिए और उनकी बैक साइड में नोटबुक में जब भी आपको समय मिले आप उसको चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा उसके साथी ने गलत के ऊपर ही टिक मार्क लगा के नंबर भी दे दिए, साइन भी कर दिए। ये उनका गुण है, उनको अच्छा लगता है टीचर की तरह से। तो आप उनको ठीक करिए, उनकी गलतियों को सुधारिए। एकीकृत योजना या टिप्स साप्ताहिक आप अपना डिवाइड कर लीजिए कि सोम और बुध को जैसे संधि करानी है, गुरुवार शुक्र को कार्य काव्य गद्य, शनिवार को परियोजना कुछ भी। सामग्री पीपीटी भी आप यूज कीजिए। चित्र, काहूत, आई थिंक बहुत सारे मेरे साथी यूज करते होंगे, काहूत भी बहुत अच्छा है, आप उनके मतलब प्रॉपर नंबर उनको दे दीजिए, वो घर से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑनलाइन कोई पीरियड आपको मिले उसमें भी करवा सकते हैं। क्विज करिए, कमजोर छात्रों की जोड़ी बनाइए, कमजोर के साथ एक अच्छा विद्यार्थी जो उसकी हेल्प करे, उससे फीडबैक लीजिए। सिर्फ कक्षा में पढ़ाकर कक्षा से बाहर मत निकलिए। आपको लग रहा है आपको रिजल्ट है, आपके पास रिजल्ट शीट है, इस शीट में मेरे 10 बच्चे बहुत अच्छे हैं, 20 थोड़े से इम्बैलेंस है, उनको बीच में बिठाइए, उनको साइड पे बिठाइए, देखिए उनमें कैसे कुछ जादुई कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। इसका लाभ क्या होगा कि बच्चों को मजा आएगा और वो सीख भी रहे हैं।
और संधि की बहुत सारी और भी विधियां हो सकती हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और पूर्व ज्ञान से आधारित हम प्रश्न पूछे, उनको चित्र दिखाइए, और ये एक 5 मॉडल प्रोग्राम है, मतलब जो स्तर है वो भी आप अपना सकते हैं। एंगेज करें क्लास को, कोई भी कविता या कहानी या किसी और इंगित करके एक्सप्लोर करें, एक्सप्लेन करें, एलोबरेट करें, एवोलेट करें पर आधारित गतिविधियां, अन्वेषण, समूह में कार्य दें उनको, क्योंकि कभी कभी बच्चे अकेले कार्य करना पसंद नहीं करते, उनको शायद अच्छा नहीं लगता, डरते भी है ना, तो समूह में वो पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि सबको सेम नंबर मिलने वाले हैं, लेकिन वो उसमें कुछ ना कुछ सुधार होगा, हम उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। छात्रों से समझ लें, फिर उनको स्पष्ट करें, छात्रों की बातों को हम सुने, उनको बताएं, विस्तार करें, मूल्यांकन करें, और बालकों संबंधी जो कविताएं हैं उनको अपने मतलब शिक्षण में लेकर आए, उनको जोड़े, उनको शिक्षा दें। मनु लक्ष्मीबाई से संबंधित उनका जीवन, उनका नाम कक्षा में लेकर उसकी प्रस्तुति कराएं, गतिविधियां चुनने के उनको सुझाव दें, उनमें विविधता लेकर आए। हिंदी शिक्षण का जो भी कार्य हो वो सामूहिक हो, एकल, दोनों तरह से हो सकता है। अंत्याक्षरी आप करवा सकते हैं व्याकरण के नियमों के साथ, और कुछ चीजों में आप उनको, बच्चों को कहिए कि वो पावर पॉइंट बना करके अपने सामने क्लास में आप हमें दिखाएं, चाहे वो गद्य से, पद्य से या व्याकरण से रिलेटेड हो। तो ये सब गतिविधियां एनईपी के अंडर भी आती हैं और वो काफी कार्यभार हमारा संभल जाएगा, और बच्चे भी रूब्रिक्स भी उनके खुद भी तैयार कर सकते हैं, हम भी उनको सहायता कर सकते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल है कि अकबरी लोटा के लिए उदाहरण या तालिकाएं, विधियां बनाएं, उनमें एक तरफ बच्चे पात्र लिख देंगे, चीजों के नाम लिख देंगे, उनका व्यवहार कैसा है, उनमें कौन सी कमजोरी आपको नजर आई, अपने अकॉर्डिंगली वो ग्रुप में डिस्कस करेंगे। आप जानिए कि उनके मन के अंदर कि वो किस तरह की रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। और उदाहरण कौशल है, कक्षा में उदाहरणों का इस्तेमाल कीजिए, अनुकरण, प्रस्तुतिकरण के आधार पर बच्चे अपने आसपास के लोगों की प्रतिरूपता कर सकते हैं और इस प्रकार भाषा आदि सीखेंगे। घर में जाते समय वो जो रास्ते में जो पंपलेट्स होते हैं वो पढ़े, हिंदी में समाचारों को सुने, आपस में बातचीत करें। अनुबंध, चीजों को देखकर या छूकर संकल्पनाएं समझाई जा सकती हैं, जैसे कि हेलन केलर, आपको याद होगा लेसन हेलन केलर की शिक्षिका ने उन्हें कोमल कार समझाने के लिए हाथ में फूल दे दिया था, राइट। तो अगर हम कुछ चीजों को टच करके बच्चों को दिखाएंगे, छोटे बच्चों से स्पेशली ये संबंधित है, तो वहां पर शायद बच्चे दीर्घ काल तक उसको याद रखेंगे। साचार्य, जब बच्चे जब अपने जीवन या अपनी कल्पना से किसी उदाहरण को लेकर एक दूसरे से इसके बारे में बातचीत करते हैं, इससे भी सीख मिलती है। कक्षा में उनको 5 मिनट की एक्टिविटी के लिए उनको टाइम दे दीजिए, आपस में डिस्कस करिए, और जो भी आपने पाया उसको वेरी संक्षेप, वेरी इन शॉर्ट 1 और 2 लाइन्स में आकर बताइए, और टीचर अपने सुझाव दे सकते हैं। जीवन समन्वय, छात्र जब अपने वातावरण में चीजों को पाठ से जोड़ते हैं तो उनकी समझ वस्तुनिष्ठ से रचनात्मकता की ओर जाती है, यही हमारा उद्देश्य है। क्रियाशीलता, छात्र खुद जब उस तरह के उदाहरणों का विचार करेंगे जो शिक्षक या शिक्षिका उन्हें देते हैं। तो आई थिंक जहां तक मैंने आपको समझाने की कोशिश की ब्लूम टेक्नोलॉजी के आधार पर, वहां पर मुझे लग रहा है कि मेरे साथी उससे सहमत होंगे, या आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है उससे संबंधित आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एंड एक बात मैं कहना चाहूंगी कि हमारे जो जितने भी हम स्कूल्स में जो हमारे डिजिटल उपकरण जो हम यूज कर रहे हैं उनको प्रयोग करते समय प्लीज ध्यान दीजिए, स्मार्ट बोर्ड बंद करके जाइए। कई बार बच्चे उसमें अपने आप स्मार्ट बोर्ड में कुछ चीजें खोल लेते हैं और हम टीचर्स के भी कुछ फोल्डर्स उसमें रह जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी मैंने पाया कि कभी हम प्रश्न पत्र प्रारूप की कुछ रूपरेखा टाइप करके और स्मार्ट बोर्ड पर हम कभी कभी छोड़ देते हैं, मतलब कभी दिखाना होगा या गलती से भी कैसे अभी हो जाता है, तो इसका उनको पूरा कमांड मत दीजिए, अपने सामने स्मार्ट बोर्ड खुलवाइए। कई बार कई टीचर्स होते हैं चाबी दे देते हैं, बोलते हैं स्मार्ट बोर्ड ऑन कर दो और फिर हम क्लास आके कर रहे हैं, तो इसका थोड़ा परहेज कीजिए। सो आदरणीय सहभागियों महोदयों, आज की इस अत्यंत मतलब अच्छी तरह से जो आपने सुना, गुड लिसनर्स, हिंदी शिक्षण कार्यशाला जो आपने अटेंड की है, शायद उसका समापन का समय नजदीक आ रहा है और सभी के हमें विद्यार्थियों से भी सक्रिय सहयोग करवाना है, उनका उत्साह बढ़ाना है, सहभागिता से मूल्यवान जिंदगी स्थापित करने के लिए उनका साथ देना है, तभी हम उनके कृतज्ञ बन पाएंगे। आपकी जो उपस्थिति है या आपने जो भी बातों को सुना समझा, शायद आपने उनमें से प्रेरणा ली होगी, चाहे आप उसमें से 1% अपने जीवन में अपनाइए। सेम क्लास में होता है तो टीचर तो एक ही पढ़ाती है, लेकिन जो बच्चे होते हैं
उनका रिजल्ट अलग अलग आता है, राइट? जब बच्चों का रिजल्ट अलग अलग आ जाता है तो कभी कभी टीचर को ये दुख होता है कि पढ़ाया तो मैंने सेम था ये अलग अलग रिजल्ट कैसे हो गया। तो थोड़ा सा बच्चों को उत्साहित कीजिए और उनको अपने बच्चों की तरह से अगर हम पढ़ाएंगे तो शायद बहुत अच्छा हमें लगेगा। और कभी कभी हम बातों बातों में ऐसे भी कहते हैं, तो मैं तो यही कहती हूँ कि मेरे बच्चे, तो कभी कभी मेरे अपने बच्चे कहते हैं मम्मा आप हमेशा कहते हो मेरे बच्चे इतने सारे हैं। मैंने कहा हाँ। और कभी कभी थोड़ा सा उनमें कुछ ऐसा भाव भी आ जाता है, जब मैं किसी की अच्छाई करती हूँ तो मैं कहती हूँ बन जाओ फिर उनकी तरह। जो बच्चा मेरा अच्छा होगा, चाहे मेरा विद्यार्थी है, वही मेरा सर्वोत्तम बच्चा है। आप वैसे बन जाओ, सीख लो। तो मेरे लिए तो सारे बच्चे बराबर हैं। इवन जितने अध्यापक अध्यापिकाओं को मैंने मतलब अलग अलग विषयानुगत हिसाब से भी मैंने उनको जो भी ट्रेनिंग दी, उनको समझाया। शुरू शुरू में कुछ जो थोड़ी नव पीढ़ी की थी ना टीचर्स, उनको थोड़ा सा लगता था कि नहीं मैं ये बात कैसे मानूं, तो मैं कहती थी मैम आपको माननी पड़ेगी, ये तो रूल है, मतलब आप इसमें बुरा मत मानिए। तो कई बार उनको अच्छा लगता था जब वो सीख जाती थी, क्योंकि खुद प्रैक्टिस करनी है ना। जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें कुछ नहीं समझ आएगा। तो हमें अपनी ग्रामर की टेक्स्ट बुक्स, आप, मेरा ये अनुरोध है सब टीचर्स से, ग्रामर की टेक्स्ट बुक को प्लीज आप खुद ध्यान से पढ़िए। और हिंदी गद्य पढ़ाते समय कक्षा में जब आपको ऐसा फील होने लगे ना कि इस लेसन का लास्ट पेज जो था उसका फर्स्ट पैराग्राफ में फोर्थ लाइन में ये लिखा था, वही एक सफल और सही मानने में प्योर शुद्ध शिक्षक की कैटेगरी में आता है मेरे अकॉर्डिंगली। आई डोंट नो कि मेरे साथ कितने लोग सहमत हैं, लेकिन मुझे पता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, मैं 7th क्लास अभी नहीं पढ़ा रही थी, बहुत समय पहले ही पढ़ाई है। मुझे याद है पहला लेसन है 7th में, अपूर्व अनुभव लेसन है, टेक्स्ट बुक के राइट पेज पे शुरू है और अपूर्व बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, अपूर्व, और बच्चे पढ़ते थे पूर्व। तो मैं कहती थी बेटा पूर्व नहीं, आ ऊपर लिखा है बड़े, इतना बड़ा लेटर बच्चों को दिखाई नहीं। तो टीचर को भी पता है मनुष्यता कहानी राइट साइड पेज पर है और 2 पेज में पीछे खत्म हो रही है मनुष्यता कविता, सॉरी। तो कई चीजें हमें खुद भी याद होनी चाहिए। बच्चा इन बातों को बहुत जल्दी से पकड़ता है साथियों। आप चाहे इस बात पर विश्वास करें ना करें, हो सकता है कुछ लोगों को जैसे जैसे अनुभव होगा आपको ये फीलिंग आएगी, आप उसको सही मानेंगे। कई बार मैं कक्षा 10 में जाती हूँ तो बच्चे मुझे कहते हैं, जैसे उस नई क्लास में मैं गई, स्विच हुआ ना पीरियड, कई बार सेम टीचर नहीं होता तो मेरे हाथ में ला करके पुस्तक दे देते हैं। मैंने कहा बेटा नहीं, आप रखो अपनी तरफ, मुझे तो सारी कविताएं सब लेसन मुझे तो मालूम है बेटा, जब जरूरत होगी आई विल सी। तो जानते हैं आप, अभी मैं जून 25 में इंडिया वापस आई हूँ। 29 years almost I spent there, 12 years in Bahrain and 12 years in Oman and 6 years in Venom Boys School Dehradun. It was residential school. In between I learned a lot और मैंने अपने साथियों को बहुत सिखाया। मुझे बड़ी खुशी होती थी कि जब तक हम जिंदा है, जब तक जीवित है, जितनी चीज हमारे अंदर है कम से कम उतना दे तो सके। अपना ज्ञान अपने अंदर लेकर अहंकार करना मनुष्य की सबसे नकारात्मक प्रवृत्ति है। किसी की चीज को सकारात्मक लेकर समझना, उसको सकारात्मक के साथ एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ी विनम्रता है। तो कई बार क्या होता है कि जितना हम विनम्र होते हैं ना, तो शायद दूसरे लोग उसको दीन भी समझ सकते हैं। तो थोड़ा बैलेंस होके हमें चलना है, थोड़ा स्मार्ट हो करके। तो ये नहीं है कि मैं बहुत प्यार से बोल रही हूँ, गुस्सा मुझे भी आता है, जवाब मैं भी दे सकती हूँ, लेकिन मेरे संस्कार मुझे अलाउ नहीं करते। हमें ऐसा नहीं सिखाया गया कि बड़ों के साथ ऊंची आवाज में बोलना है। आप शिक्षक शिक्षिकाओं इस बात पर मतलब बहुत गंभीर से विचारना, ये मेरा लास्ट पॉइंट है कि अगर आप में विनम्रता होगी तो आप किसी से भी हार नहीं सकते, कभी भी नहीं हार सकते। चाहे आपका कोई कितना भी मजाक उड़ा ले, आप उसको एक साइड पे रखिए, जो संतुष्टि आपकी होगी, क्योंकि आप अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल निष्ठावान थे। ऐसी आत्मसंतुष्टि ही हमें जीवन में आगे मुक्ति का द्वार तक लेके जा सकती है, क्योंकि हम साहित्य के टीचर्स हैं। तो आई थिंक ये आप समझ रहे हैं। तो यहीं पर मैं विराम करना चाहूंगी। अगर आपको अपना कोई अनुभव शेयर करना है या कुछ बताना है तो आप बता सकते हैं। फिर मैं एक आधी बात, क्योंकि मैं कविताएं लिखती हूँ, तो मैं एक कविता आपको सुनाऊंगी। मैंने बुक लिखी हुई है और मेरी ऑनलाइन पब्लिश होती रहती है कविताएं, अमर उजाला न्यूज़पेपर में भी, और कनाडा से एक मैगजीन भी निकलती है। आप नेट पे लिख सकते हैं डॉक्टर परमजीत ओबराय, यू विल सी ऑल द पोएम्स एंड ऑल। क्योंकि मैं लिखती हूँ और एक ही मेरी पुस्तक अभी तक मैंने एक ही पब्लिश कराई है, दिन है आते जाते। इसमें से मैं आपको एक कविता पढ़ के सुनाऊंगी। तो अगर किसी का कोई विचार, या शायद मैं भी आपसे कुछ सीख सकूं, तो आप अपने कुछ विचार अगर प्रस्तुत करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जी मैम। हाँ जी मैम। हाँ जी नीवा मैम। हाँ, मैं निभा झा। जो आपने पहले बताया प्रत्यय के बारे में, जी। तो
तो प्रत्यय को मैंने बच्चों को इस तरह से समझाया था कि जी। हम भारत के हैं, हाँ, हम भारतवासी हैं, तो हम यस, हैं करेक्ट। भारतीय। यस, थोड़ा मैं हंसी मजाक में बच्चों को एक यस, जैसा ये शिक्षा देती हूँ। करेक्ट। तो उसको मैंने पूछा, बच्चों से पूछा कि फिर जो आप लोग चाइनीज चाइनीज बोलते हो, हिंदी में है वो चाइना इज चीन, और यस, वहाँ के जो निवासी हैं वो हो गए चीनी। यस, चीनी करेक्ट। हो गए तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। यस, करेक्ट, करेक्ट, बहुत अच्छा, राइट, मैं भी बताती हूँ। तो अब चीनी चीनी के बर्तन भी होते हैं। वही, और चीनी मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। उसके करेक्ट। बाद मैंने बोला एक और देश है, जी। रूस, यस, तो करेक्ट। वहाँ के निवासी को बोलेंगे रूसी, और हम यस, भारत में बोलते हैं कि बालों कहीं में, हो गया तो बालों में। हाँ, तो रूसी का हम लोग क्या वैल्यू देंगे, झाड़ देते हैं ऐसा। अब बताइए करेक्ट। आपको क्या समझ में आया। तो बहुत अच्छा, ये अनेकार्थी हो गया ना, हाँ, यस, अनेकार्थी की चीज में। यस, ये प्रत्यय हो गया, ई प्रत्यय हो गया, बहुत और अच्छा, प्रत्यय। जी मैम। बहुत अच्छा। तो मतलब आज भी बहुत सारे हमारे अच्छे शिक्षक हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। वेरी नाइस। जैसे कि आपने वो नंबर्स का बताया था ना, मैं इंटीग्रेट करके जी, पढ़ाती हूँ, बिकॉज मेरा जी, हिंदी सब्जेक्ट भी है, सॉरी जी, म्यूजिक जी। सब्जेक्ट भी है। हाँ, ओके, राइट। हाँ, मैं संगीत से एमए मैंने किया है। ओके, तो गुड। उससे मैं, तो जो आप नंबर्स का बताई, तो जी, वो जी। जो आना आना वाला, हम्म। हाँ, तो पहले उसको मैंने सवा, साढ़े, पौने, ये सब यस, सिखाया करेक्ट। उसको। तो सवा छः जो होता है, सवा छः पैसे, वो होता हम्म। है, हाँ, और चार आना, करेक्ट। और सही है। 25 पैसे, हाँ। हाँ, उसको बहुत मैंने अच्छा। गाना गाना भी, जैसे आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, जी, ये जी, सब जी, गाना करेक्ट। है। वही ना, उसका, जोड़ना है हमें। जी, बहुत अच्छा, ऐसे ही तो रुचिकर बनेगी क्लास। जी, जी, जी। तो बहुत एक सही। वो गाना भी सुनाया, और किशोर कुमार जी का था ना, 5 रुपया यस, 12 12 आना, आना। यस। यस, वेरी नाइस। वो सब सुना के मैं करेक्ट। सिखाती हूँ। बहुत अच्छा। नीमा मैम, आपने बहुत अच्छा, मतलब बहुत खुशी हुई, मतलब धन्यवाद, सुनकर कि धन्यवाद। आज भी, मतलब हीरे हैं। जी। मैंने ये बात कही है कि आज भी हीरे हैं, हीरे तो हैं ही। तो हाँ, आपने टीचर उसका की मतलब सही साक्षात रूप दिखा दिया। धन्यवाद, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत बहुत। अच्छा। जी मैम, बहुत अच्छा लगा आपका ये जो सेशन था वो सुन के, मैं बहुत एंजॉय कर रही थी, और मुझे, मैं अपने को अभी कहीं तो कहीं बहुत सारी बातें रह गई, क्योंकि जी, एक इसमें पूरी बातें नहीं हो सकती, तो मैंने कोशिश की है थोड़ी थोड़ी टच करने के लिए। जी, 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 जी जी, मैम। हाँ जी, जी। हाँ, यही तो संक्षेपण है ना। जी। हाँ, गागर में सागर भर दिए आप। ऐसा नहीं है, समझने वाले पर भी डिपेंड करता है मैम। अगर मेरी क्लास में मेरी बात ही नहीं समझ आ रही, वो एंजॉय ही नहीं कर रहे, उनको पता ही नहीं चल रहा, तो उनके लिए बेकार है। हाँ, वो बात तो भी है। मुझे हर दृष्टि से उसको छूने की कोशिश करनी है। अब संगीत आप मतलब सिखाती हैं, तो संगीत भी तो एक तरह का है ना मैम, हमें चाहे गाना समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो हमें अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, हाँ जी मैम। उसके अब जैसे लिरिक्स। कि बच्चे बच्चे बोर हो रहे हैं, तो मैं जी, पूछती हूँ कि टीचर कौन है, तो कभी कोई बच्चे बोलते हैं कि दोस्त हैं, तो उसके बिल्कुल। बाद मैंने अमिताभ बच्चन का वो गाना सुना दिया, मेरे पास आओ मेरे मेरे दोस्तों। दोस्त तो राइट। यस। करेक्ट। तो बच्चे अपनी तरफ से भी बना सकते हैं ना, उनके जी, साथ उनको एक छोटी सी कविता भी हम कह सकते हैं कि आप इसी बेस पर, हमने सुना दिया या किसी बच्चे ने, आप एक यस, छोटी सी कविता बना लो, 4 लाइन की बनाओ। जी, मतलब जी, डरे नहीं कि कविता लिख रही है इतनी बड़ी, हाँ, 4 लाइन की भी बहुत है। तो मैंने बना, पता है क्या किया, इसी बात को जो आप बता रहे थे मुझे याद आया। तो हाँ जी, सभी टीचर्स के साथ मेरा ये अनुरोध है कि अगर आप 4 4 लाइनें की कविता उनकी इकट्ठी कर लेंगे ना, उसको चेक करना थोड़ा इजी रहेगा छोटी कविता हाँ का। जी, तो जी, मैंने एक वॉल मैगजीन तैयार की थी वहां, अच्छा, मतलब गल्फ में वॉल मैगजीन। आप सोच रही होंगी, आपको पता है, जो जो टीचर्स हैं उनको पता है चेक करने में कितनी प्रॉब्लम होती है, कितनी तो गलतियां करते हैं। मैंने कहा बेटा, जितना आपने नीला पेन चलाया उससे ज्यादा मेरा रेड पेन चला हुआ है उसके ऊपर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं करूंगी ना शुद्धि, आप हाँ, रखो मेरी सीट पे। कभी कभी मैं नहीं होती थी, मैं क्लास में होती थी। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 साल लगा मुझे ये करने में। तो हाँ, इतनी सुंदर उन्होंने वो निकाली, मतलब हस्तलिखित पत्रिका मैंने उनकी निकलवाई, कंप्यूटर पेजेस मंगवाए, जो बच्चे पेजेस दे सकते थे उन्होंने, जो ड्राइंग कर सकते, वही मैंने बताया ना, सबने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो जी, सबको ये फील हुआ कि ऐसा नहीं है कि निवा ने बहुत अच्छी कविता लिख दी, परमजीत को तो आती ही नहीं लिखनी, तो मुझे हाँ, तो रंग करना आता है ना, तो मैंने कर यस, दिया उसमें रंग। तो नीचे सबके नाम आ गए, तो हाँ सबको एक संतुष्टि हुई। तो ऐसे ही हमें बच्चों को आगे मतलब बढ़ाना है, जी। यही है हमारा ध्येय। चिट्ठी जो एक लेसन है, कविता है, तो चिट्ठी को मैंने, चिट्ठी तक उतना ही मैंने उसको, ये नहीं रखा, लिमिट नहीं रखा उसको, मैंने क्या, जी। अंतर्देशीय पत्र कार्ड कैसा होता था, अब बच्चों को तो नहीं पता था हाँ, अंतर्देशीय। बिल्कुल, इमेजेस भी दिखा तो सकते हैं। जी मैम, वो पिक्चर मैंने बनाया, उसके बाद कागज पे काट के मैंने बनाया, और मैंने बोला कि तुम लेटर लिख के मम्मी पापा को भेजो। यस। बच्चे बच्चे खुद भी बना सकते हैं मैम, उनको यस, एक पीला पेपर लेकर वो प्रैक्टिकल टाइप मैंने बनवाया परियोजना है। कार्य,
मैंने हाँ, कुछ भी बनवाया करा और सकते मुझे हैं। बोला कि स्टैंप लगा दो लाके उसमें इतने पैसे का, बिल्कुल और पोस्ट सही है, कार्ड भेजो। डब्बा सही है, बताना कैसा होता है, डब्बा भी बिल्कुल। बना। हाँ, थोड़ा उनको पता होना चाहिए ना हमारी जो, मैं बच्चों को ये बोलती हूँ मैम, एक बात मेरी ये थी, आपने मुझे मतलब बहुत अच्छा हुआ आपने ये बातें मतलब मुझसे शेयर की हैं, तो मुझे याद आया एक लेसन है, ये चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, क्लास 8 में, हाँ हाँ जी, राइट? क्लास तो में, हाँ उसमें जी। एक बात तो मतलब बच्चों को मैंने ये कहा कि बेटा चिट्ठियां सब लिखते हैं, सब तो नहीं लिखते नेचुरली, लेकिन फिर आज भी हर जगह पर डाकघर क्यों है? इसका मतलब कुछ तो इम्पोर्टेंस है। हाँ सेकंड, फिर मैं कहां पर आई, अंत मैंने यहां से किया कि आज सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ है ना, बच्चे हाँ घर में जी, भी तो पढ़ सकते हैं मैम, टेक्स्ट बुक भी जी, तो उनको नेट पे मिलती है, तो फिर स्कूल क्यों खुले हुए हैं? तो हाँ कहीं ना कहीं तो कुछ चीजें हमारी चेंज नहीं हो सकती, हमारे धार्मिक ग्रंथ जितने मर्जी आप मॉडर्न हो जाओ वो कभी चेंज नहीं होंगे। जी जी जी। तो कुछ चीजें हमारी हमें स्वीकार करनी है, उनको बताना है ये। जैसे बोलते हैं कि मैं इसमें गूगल में सर्च कर लूंगा, तो मैंने बोला सर्च क्या? कर लो, एआई है, चैट करेक्ट। जीपीटी है, सब कर उसमें लो। गलतियां भी होती हैं मैम। हाँ, नहीं नहीं, मैंने बोला कि वो गूगल हम्म। कोई पर्सन नहीं है ना, कोई जी। व्यक्ति नहीं है, नो। हमारे आपके जैसे लोगों ने दिया है। बिल्कुल। लेकिन गूगल पे सर्च करके या एआई आपको पढ़ा देगा जो भी, ये जी। फीलिंग्स जो है, चेहरे का भाव यस। भंगिमा, वो आप उनका यस। कैसे देखोगे? हाँ, अब मैं वही कह रही थी, आज हम ऑनलाइन वेबिनार कर रहे हैं, तो मुझे मतलब मैं अगर आप मेरे से पर्सनली पूछे तो मुझे जी, फिजिकली उसमें ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब टीचर ज्यादा सामने होते हैं उनके बीच में घूमना, उनको हाँ बताना, उनसे बातचीत करना, लेकिन ठीक है आजकल थोड़ी व्यस्तता है तो थोड़ा हमें स्वीकार भी करना है। जी, हमें पिछली चीजों को पकड़ के तो नहीं बैठ सकते ना, हाँ तो ये हाँ भी एक रूप है, इट्स जी ओके, लेकिन जो चीज फिजिकली आप बच्चों को सिखा सकते हैं शायद वो संभव नहीं होती है। आप जी, जानते हैं कोरोना टाइम में भी हम लोग ऑनलाइन सिखाते थे, तो कभी नेट नहीं चल रहा, कभी दिक्कत हो रही है बच्चों का, वो चीज को नहीं, ये बहुत हमने फेस की है, हाँ लेकिन यस, टाइम टू टाइम समय परिवर्तनशील है, तो थोड़ा तो हमें हाँ उसकी करना साइड पे रहना ही है। है। इट्स ओके, टाइम के अनुसार हमें थोड़ा बैलेंस करना है। वही मैम, चिट्ठी का जो था ना, तो मैंने गाना सुनाया, तो अब मैंने बोला कि पर्यायवाची शब्द से मैं गाना सुनाती हूँ। खत लिख दे सवरिया के नाम बाबू, चिट्ठी ना यस। कोई संदेश, पहले सुनाया करेक्ट। चिट्ठी आई है। उसके हाँ। बाद फिर जो, हाँ फिर जो मैंने वही बोला कि अब जो है आप लोग इसका चिट्ठी का मतलब समझो, और ये होता था हम लोग का, बिल्कुल। जाके पोस्ट ऑफिस के पास जाके डब्बा देखो किस कलर का होता है, राइट। बनाया भी सही बच्चों है, ने। हाँ इसी बहाने जाएंगे वो देखेंगे। जी जी। बिल्कुल। भाई अच्छा अगर आप बताएंगे दे विल डू, पूरा लेकिन ये कि इन्वॉल्व हमें थोड़ा होके, गाइड करना है। जी मैम, इन्वॉल्व होके पढ़ाना। आपने बोला ना बिल्कुल। गलतियां होती है, कभी होती कभी हैं, कोई गलतियां बात नहीं। होगा ही, यस। तो वो तो गलतियां है नहीं ही। होगी तो हम लोग गॉड हो जाएंगे ना। बिल्कुल। वही ना, अब वही है कि अगर सभी लोग मिलकर अगर इस चीज को समझेंगे तो जी शायद उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा ही होगा। तो हमें अपनी सीमाएं याद रख करके हाँ शायद उनके साथ थोड़ा टच रहना चाहिए, अपनों की तरह से, जी अपनापन जहाँ मिलेगा ना वहाँ हर चले कोई आगे। अटैच होता है। जी। पापा को फोन कर। यस मैम। यस मैम, मेरे तरफ से बस इतना ही था। हाँ ओके। जी तो ठीक है, आई थिंक अगर आई थिंक 8 बजे तक टाइम है तो मैं अपनी एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। जी मैम, जरूर। अ, जी रे मैम ठीक है? हाँ 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 ठीक है। और यस मैम। anyone else want to share हाँ। anything, any यस। query or any question or anything is there? Mhm. Okay, then if and we will share the feedback form in the WhatsApp group. There you can share your feedback and which other topics you want for future workshop. You can mention over there. Okay. ओके मैम, श्योर। Okay. Now, yes. या Yeah. एक छोटी सी कविता है मैम जो हमारे आज के जीवन से संबंधित है, कि हम सब में, आप भी परिवार में रहते हैं, आप सबकी अपनी अपनी फैमिलीज हैं, तो मुझे लगता है दूरियां थोड़ी बढ़ गई हैं, उसके ऊपर मैंने एक कविता लिखी है, दूरियां। दूरियां दूरियां बढ़ रही हैं क्योंकि बढ़ गई हैं किसी और से नजदीकियां। दूरियां बढ़ रही हैं क्योंकि बढ़ गई हैं किसी और से नजदीकियां। मोबाइल हो गए प्रमुख, छिनती जा रही रिश्तों की नजदीकियां। अपनों की उपेक्षा कर दूसरों से नेह बढ़ाते, क्या यही रिश्ते हैं आज के, हम समझ ना पाते। मोबाइल के हो गए सब कायल, होते हैं जिनसे बहुत से हृदय घायल। अपने अपने में है व्यस्त आज के युवा, क्या रह पाएंगे वे केवल चुनिंदा चीजों के लायक। शोक में है ये पीढ़ी अभिभावकों व शिक्षकों की, जिन्हें देखते अब रहते सह सदा किसी और के साथ व्यस्त।
शायद भूख कोई बढ़ती जा रही है, वजह से जिसके नव पीढ़ी कुछ गुमराह होती जा रही। हो जाए ईश की अनुकंपा इन पर भारी, सबकी बुद्धि हो जाए नित न्यारी। भविष्य सुधार कर अपना चले अपने पथ पर, है जिनके वे अधिकारी, है जिनके वे अधिकारी। तो मैंने देखा आजकल बच्चे क्या, इवन माँ बाप, मतलब ऐसी सोच है, सभी के हाथों में मोबाइल होता है। बच्चे लिख देते हैं आई एम इन दैट रूम मम्मा प्लीज गिव मी दिस टी हियर। मतलब बच्चा घर के अंदर बैठा है और मैसेज लिख रहा है। तो हमारी ये दूरियां बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं गैप तो है, तो उसे हमें भरना है। जी मैम। ठीक है, हमें पीढ़ी के साथ मिलना है, हम भी मोबाइल से दूर नहीं रह सकते, लेकिन इसके साथ मानवता के जो हमारे रिश्ते हैं वे खत्म ना होए। इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम हिंदी के शिक्षकों के ऊपर है, मेरा ये कहना है। क्योंकि हिंदी में जितना शिक्षक बच्चों से बात कर सकता है ना क्लास में, शायद ही कोई और टीचर करता होगा, चाहे मैथ्स पढ़ाता होगा, ही और शी और दे आर वेरी मच एक्सपर्ट इन साइंस एंड ऑल एवरी सब्जेक्ट। में किसी की मतलब नकारात्मक दृष्टि की ओर नहीं ध्यान दिलवा रही, मतलब साहित्य में इतनी हमारे पास अप्रोच होती है, इतना टाइम होता है कि हम बच्चों को सारी बातें उनसे सीख भी सकते हैं, उन्हें सिखा भी सकते हैं। मैम इसका भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था बच्चों को कि इंग्लिश में सिर्फ 26 अक्षर होते हैं और हिंदी जो है हमारा उसको डबल कर दो। यस। हाँ, 26 × 2 या वही। 52। और मैम आजकल तो ये है ना मैम, हिंदी में भी जैसे कुछ शब्द है, कुछ भी है, कई बार मैंने देखा ऐसी चर्चाएं बढ़ जाती है जिसका कोई मूल्य नहीं होता है, उसकी कोई हाँ जरूरत नहीं है। जी आजकल तो मतलब हिंदी तो मतलब एक तरह से देखिए, हम कितने अदर भाषाओं का शब्दों को प्रयोग करते हैं, कॉलेज बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट करते हैं। जैसे माँ होती है घर में, जी जी। माँ होती है घर में, सब चीजों को एक्सेप्ट करती है। तो आई थिंक हमें हिंदी को ज्यादा क्लिष्ट बनाने की कोशिश ना कर, थोड़ा जी उसको आसान वे में लेके जाना है, ताकि जी बच्चे जब ट्रेवल भी करते हैं ना मैम अलग अलग कंट्रीज में या कहीं भी कैरियर वाइज भी, थोड़ा उनको इजी फील हो। ऐसा ना फील हो कि ओ हिंदी की टीचर तो पता नहीं क्या क्या शब्द यूज कर देती थी, बड़ी क्लिष्ट भाषा। जी जी। तो आजकल के मतलब इस दौर को देखते हुए हमें मतलब ये भी बड़ी कह सकते हैं कि बड़ी अ, अजीब सी बात है कि इतना हमारी कोशिश करने के बाद निवा मैम और अन्य मेरे साथियों, फिर भी हिंदी से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हिंदी के अध्यापक मतलब आप देखेंगे कि बाहर की कंट्रीज में तो 10th के बाद हिंदी नहीं है, इंडिया में भी इवन बहुत सारे स्कूलों में 10th के बाद हिंदी नहीं है। जी नहीं, मतलब हाँ सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। भारत देश में होकर इतनी बड़ी विडंबना, जब हमारी अपनी भाषा में ये चीजें नहीं मिल रही, तो उसमें कहीं ना कहीं रिक्ति तो है। तो उसमें हम कैसे अपना सहयोग दे सकते हैं, उसको रोचक बना सकते हैं, ताकि बच्चे जितना भी पढ़े, चाहे जी 10th तक पढ़े चाहे 8th तक पढ़े, अपने जीवन में उसको उपयोगी समझे, उसका उपयोग कैसे करें। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ा दिया, उनको कुछ याद ही नहीं है कि हमने क्या पढ़ा था, किस समय पर कौन सी बात पढ़ी थी। तो कुछ पाठ तो उनको याद रहे, हिंदी की टीचर तो याद रहे। यस निमा मैम, शायद आप सहमत होंगी। अरे हाँ जी मैम, पक्का 100%। क्योंकि बच्चों को ये जोड़ दिया गया क्षेत्रीय भाषा और लोक भाषा जो है करेक्ट। उसको बोल दिया मातृभाषा। या और मातृभाषा को भी ऐसे बोला जा रहा है कि मातृभाषा। उसको भी मैंने करेक्ट। विश्लेषण किया कि मातृभाषा वही। इज ओनली लैंग्वेज, लेकिन यहाँ करेक्ट। पर है मातृभाषा, मदर लैंग्वेज। यस। तो करेक्ट। बच्चों को पूछती हूँ कि आपकी मातृभाषा क्या है, तो वो क्षेत्रीय भाषा बताता है। यस। तो उसको भी मैंने करेक्ट। अच्छे से भी खंडन करके मैंने पूरा उसको बताया। हाँ हाँ ठीक है, अगर बच्चे चाह रहे हैं, मतलब हर एक को हम थोप नहीं सकते हैं, इट इज वेरी नहीं वेरी क्लियर। मैम थोपने का नहीं है, लेकिन अगर आप उसको बच्चे को माँ से जोड़ते जी। हो तो बच्चा जी। नजदीक हो जाता है, सीखता है इजी से। हाँ नहीं नहीं, मैं सरल यहाँ पर भाषा से आपकी बात सीखता नहीं है। कर रही, मैं जी ये बोल रही हूँ कि जैसे अगर हम जबरदस्ती और टीचर्स जाकर के, अगर हम ही अपनी क्लास में जबरदस्ती जाकर के टॉपिक को शुरू करें या कुछ बताने की कोशिश करें, तो जी वो शायद ठीक नहीं होगा। टाइम टू टाइम जैसे समय मिले, जैसा माहौल हो, उसके अकॉर्डिंगली हमें बताना है, तो जी ताकि जी बच्चे थोड़ा इजिली सीख सके। मेरा मतलब है हिंदी को जितना आसान बनाकर सिखाया जा सके, उतने ही बच्चे उसमें रुचि लेंगे, जैसे मतलब आपने व्यवहारिक जीवन से जोड़कर। टॉपिक आपने बताया ना कि टॉपिक पहले समझाना जी। चाहिए। तो पता है उस टॉपिक में अगर 4 शब्द है तो उसका मैं बिल्कुल। ग्रामर भी बता देती हूँ। सब कुछ हाँ उसमें कवर है, सब कुछ जैसे हम ग्रामर के पंछी, यस, सारे चैप्टर भी कवर हैं, हाँ नंबर ऑफ जैसे चैप्टर्स उसमें हम मिलेंगे। पंछी उन्मुक्त गगन के आपने बताया यस ना। करेक्ट। तो बहुत हम, सारी चीजें हैं। हाँ, हम सर्वनाम, पंछी हाँ संज्ञा, इस तरह भाई, से मैं बता देती हूँ। बहुत सारी चीजें हैं। हाँ और पता है बच्चे आंसर भी देते हैं मैम, यस दे यस। आर टेकिंग इंटरेस्ट। अगर हम देंगे, सिर्फ लिख लेंगे तो बच्चों को पता नहीं चलता है उसमें। मैं तभी मैं कह रही हूँ ना, हमें ग्रामर को अलग नहीं करना, साहित्य को अलग नहीं करना है, कविता वगैरह को उनसे जोड़ जोड़ के एक दूसरे से अटैच है। हर मेरा लेसन एक कहने का दूसरे से वही है अटैच है। मतलब मैम कि पहले संस्कार उसके जी। बाद शिक्षा।
मैं बिल्कुल संस्कार सही, डाल रही हूँ बच्चों बिल्कुल सही। में। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। मुझे तो बहुत खुशी हुई, आपकी बातें तो मुझे मेरे हृदय को छू गई, और सच में मैं बता रही हूँ कि मुझे ऐसे टीचर्स बहुत कम दिखे। मतलब 33 साल के अंतराल में शायद, अगर मैं फर्स्ट लेन के, जैसे कहते हैं ना हिंदी के छायावाद के 4 स्तंभ, तो स्तंभों में आपकी गिनती शायद मेरे दिमाग में यही आ रहा है। रियली बहुत इट्स बहुत वेरी गुड। धन्यवाद मैम। पता नहीं हमें कब तक रहना है, लेकिन जब तक रहे तो हिंदी के प्रति थोड़े समर्पित भाव अपना रखें, ये बहुत जरूरी है, अब बहुत सोचिए, जरूरी। मेरी उम्र जो है अभी 53 साल रनिंग है, जी, और मैं पीएचडी कर रही हूँ मैम। अब गुड, सोचिए। बहुत अच्छी बात है। मैंने भी शादी के बाद, मेरे 2 बच्चे थे, मैं जॉब कर रही थी बाहर, तब मैंने पीएचडी किया है, क्योंकि मेरा पढ़ने का शौक है। हाँ वही। तो सब कहते थे आप जॉब भी कर रहे हो, बच्चा मेरा मेरा बेटा पैदा हुआ और मेरा पीएचडी का वाइवा था। जी जी जी। मेरा फर्स्ट फर्स्ट 31 अगस्त को मेरा बेटा पैदा हुआ, ओह, थर्ड थर्ड सितंबर को मेरा पीएचडी का वाइवा था। तो वाह। सब कहते थे भी कमाल है, मैंने कहा बस मुझे पढ़ना है, उसमें कोई हाँ, कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो बच्चों अपना को मैं शौक है। बताती हूँ, तो बच्चों को बोलती हूँ कि आप अगर स्टूडेंट हो, आप छात्र हो, जी, तो मैं भी अभी छात्रा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जैसे लोग ना कभी बूढ़े नहीं होते मैम, नहीं होते। बच्चों के संसर्ग में है ना। जी तो जी। हमें बूढ़ों की वो बातें, वो गॉसिप वगैरह, वो चीजें अच्छी नहीं लगती, कुछ काम की बात करें तो ज्यादा मजा आता है। जी, और थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस जैसे आपने शेयर किया, तो उससे भी हमको सीख मिलती है, तो मैं भी बच्चों या को कुछ कुछ बिल्कुल, बताती हूँ। हाँ, जी, नैतिक मूल्य जो है, बिल्कुल, और व्यावहारिक जी, जो, हाँ, तो व्यावहारिकता वगैरह सब मैं बताती हूँ जी, मैं, और मुझे बस उसी से खुशी मिलती है, सब कुछ बिल्कुल, जानकर। मैं किसके लिए हूँ वो करती हूँ बस। बिल्कुल सही बहुत मैम। अच्छा लगा, आपकी कविता भी बहुत अच्छी थी मैम। जी, एक बार फिर से तालियों धन्यवाद धन्यवाद मैम। जी, बहुत ठीक है। अच्छा था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा मैम, रियली सच में। और जी मैम, आपने मुझे मौका दिया बोलने का, ये तो और भी अच्छा लगा। नहीं नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि This मुझे भी किसी से सीखने को platform मिले, is मुझे भी पता मिले। जी जी जी। मैम, Envision is such a platform that it opens for all. अरे, Anyone can share their opinion, their views, and non-judgment राइट, ठीक platform. ठीक यस, है। करेक्ट। थैंक यू सो मच, थैंक And यू सो thank you, मच, बोथ Paramjit ऑफ यू। ma'am, thank you, Niba ma'am, and thank थैंक you all the educators who have joined थैंक us यू मैम, थैंक यू टू tonight. ऑल। Yeah, let us conclude tonight. Again, we will be coming with another workshop. Okay, ओके मैम, थैंक यू, okay. थैंक यू मैम, थैंक यू Good मैम, night. गुड नाइट। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। बाय परमजीत मैम, बाय, फिर बाय मिलते मैम, हैं। बाय बाय आई मैम। होप फिर मिलेंगे, ओके। जी जी, श्योर, यस, ठीक है मैम।